Hello everybody, welcome back to another video. Welcome back to another new episode of the Real or Real podcast. This is the episode number 8 of the Real or Real podcast, and today I have with me the boys Sahil Malwani and Pari Pool. These two might be one of those familiar faces on the channel, on my channel, and today yet again we three small creators are talking about two things that are really being talked upon these days. That is the number one, YouTube disabling the dislike button on the platform, across the platform. So in the first part of the podcast or the video you are watching on YouTube or listening on Spotify, we'll be talking about different perspectives, what we think, and we'll also be analyzing, what is the mindset or perspective of YouTube behind doing this all thing. And we'll also talk about how we feel, what will be the consequences or the goods and the bads of YouTube's whole campaigning around the disabling the dislike button. Secondly, the most important, I think this conversation went really well on our side. We discussed about the metaverse, this whole thing that has been in the news or in the discussion lately on the internet. That is the founder of Facebook, Meta. Mark Zuckerberg had introduced this whole metaverse thing, and I think everybody has talked about, everybody has made videos about this, but I think that very few on the platform have discussed about this metaverse from a country like India's perspectives, and what Indians might do or might face if metaverse comes in our country. So I think yes, we also have predicted a possibility in future. So if you want to uh, come across that, you need to listen to the podcast and tell me how was it. So yes, we have predicted some things, we have discussed some darker side of metaverse. Of course we have discussed the goods, but also we have talked upon the darker side or the bad thing that metaverse might come up with. So I think you'll like it, you'll like the conversation. If in that case you like the conversation, if you're watching this on YouTube, if you're watching me on YouTube, you can just subscribe the channel. You can turn on the bell notification icon so that you can never miss a video from my side, or the podcast episode you might love in future or like in future. If you are listening to this on Spotify, you can follow the podcast, the Real or Real podcast. We are trying to be consistent these days. So yes, and then you can turn on the notification icon as well on your Spotify, so that whenever we have such a great conversation with some really good people, you're the first one to get notified. So yes, that was it. I would like you to really enjoy the conversation without wasting any much of your time. Let's dive in the episode number 8 of the Real or Real podcast, YouTube disabling the dislike button and the reality of metaverse. Enjoy the conversation. Hello everybody, welcome back to another video, welcome back to another episode. This is the episode number 8 of the Real or Real podcast. और भी रील और रियल में घुसा रहा है अपने को। ये हमको लगा ऐसा कुछ एंडिंग का रहेगा स्पेशल पॉडकास्ट हमारा, ये रियल में घुसा रहा है अपने को। टुडे आज हमारे साथ है साहिल भाई लास्ट हमें जब दिखे थे 1 साल पहले, तब वो स्कूल में थे, अब वो कॉलेज में आ गए। मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने इस भाई को हाथ जोड़ के बोला, भाई हमारे साथ बना लो पॉडकास्ट। सबके साथ बन रही है, हमारे साथ एक भी नहीं बन रही। पैरी जब हमारे साथ आए थे, पैरी जब हमारे पास आए थे लास्ट, तब वो स्कूल में थे, वो जूनियर कॉलेज में आ गए हैं। सीनियर कॉलेज में हम, वो 12 तुम्हारे इधर स्कूल होगा, इधर कॉलेज है वो। ठीक है, हाँ भाई, अंग्रेजों की औलाद। आज मैं ऐसा नहीं 11-12 अंग्रेजों के इधर है हाई स्कूल। तुम स्कूल में हो, चुप रहो अब। +1 +2 बोलो। हाँ ठीक है यार, वो भी ठीक है, मतलब 11वीं 12वीं बोल रहे यार, इससे ज्यादा क्या सिंपल करूं। तो आज मैं बोलने वाला था इंट्रो में कि इट्स योर होस्ट
इट्स योर स्मॉल क्रिएटर बैक विद अनदर पॉडकास्ट, बैक विद अनदर एपिसोड। बट आज हमारे पास पैरी हैं, तो हम स्मॉल क्रिएटर तो नहीं है, हम माइक्रो क्रिएटर में चले जाते हैं। आई एम अ माइक्रो क्रिएटर, स्मॉल क्रिएटर अब पैरी है। सेकंड हाँ ऐसा बोल के जैसे मिलियन व्यूज आते हमको। भाई हाँ सेकंड जेन साला यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं भाई ये। एक 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 1,000 सब्सक्राइबर्स पे 2 साल से अटका पड़ा हूँ ना, ग्रोथ है। क्रिएटर के नाम पे सिर्फ आपका जैक्स फॉलो करता है मुझे बस। साहिल लीव कर दो मीटिंग तुम। नहीं भाई देख पैरी, अरे कर दी इसने, सही में कर दी क्या? नहीं है सही में निकल हाँ, गया। हाँ है। ओए तो भाई पैरी, हमने तुम्हारा हाँ। पता है कितना इंतजार किया? हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। 1 साल 6 महीना 4 दिन 3 घंटा 50 मिनट 16। पहले तो पिछले साल एक पॉडकास्ट शूट किया था तुम्हारी गलती के वजह से। मेरा वो हम आया नहीं। सबका हम हाँ। सबको ऑडियो ही नहीं आया। नहीं उसमें फिर उसके मेरी जब गलती नहीं है। दूसरी बार जब किया था तो साहिल था, साहिल और मैं थे, ईयर एंड पॉडकास्ट था वो। दूसरी ये बार भी भाई ये भी मैं देख। हाँ बोल। हाँ वो टाइम नहीं मिला बाद में वो। हाँ तो हाँ, भाई फुल लॉन्ड्री के साथ घूमना होता है। हाँ नहीं बनता है ऐसे ही। तो so, लॉन्डो के साथ घूमू क्या रे? हाँ तो देख मैं क्या भाई। बोल रहा हूँ। तुम दोनों हाँ आपस में कर लो, है ना? नहीं आप आगे आगे बढ़िए। हाँ तो मैं बोल रहा था कि दिस इज ऑल्सो द ईयर एंड पॉडकास्ट, क्योंकि ये साल कुछ खास था नहीं। मैंने पिछली पॉडकास्ट का क्या टाइटल रखा था साहिल? 2020 नीडेड टू एंड होप 2021 इज अ बैंगर, है ना? ये रखा था मैंने टाइटल पिछले पॉडकास्ट का, ईयर एंड का। बैंगर के नाम पे एग्जाम कैंसिल होकर 80% आया और कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है ना, पर अच्छा है तुम्हारे लिए तो, बहुत है, स्वर्ग है तुम्हारे लिए तो, और क्या बोलूं मैं। सही। पर ऐसा कुछ एक्साइटिंग हुआ नहीं इस साल, मतलब तो शांति गया। हाँ दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि अभी के 2 बर्निंग टॉपिक से बात करेंगे अपन। एक तो अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो दोनों ही हैं, बट मेजरली अपन बात करेंगे सबसे पहले तो जो YouTube अपने हर Yes. हर महीने ओजी ओपी अपडेट्स लाता है इंटरफेस में क्रिएटर्स के लिए। तो इस बार फिर से दे आर बैक विद अनदर अपडेट। डिसलाइक बटन हट चुका है। साहिल तू उदास क्यों रहा है? डिसलाइक बटन हटा है, तेरा चैनल नहीं। वही तो ज्यादा आते थे चैनल पे, अब क्या आएगा ज्यादा? नहीं अरे यार मैं एक और चीज बोलना था साहिल। नहीं मैं एक और चीज बोलना था साहिल। लास्ट टाइम जब तुम आए थे तब तुम स्कूल में थे, अब तुम कॉलेज में हो, लेकिन वीडियोस तब भी नहीं आ रहे थे और अब भी नहीं आ रहे हैं। ये इंट्रो था तेरा, बट मैंने सोचा इसको थोड़ा बाद में बोलेंगे। यस तो भाई तुम्हारे फर्स्ट देखो, इंप्रेशंस क्या हैं? नहीं देखो, मेरे चैनल की बात रही तो वीडियोस पहले इसलिए नहीं आते थे because हम पढ़ रहे थे हाँ पढ़ाई चल रही थी तुम्हारी। हाँ और अब हम कॉलेज में हैं तो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। हाँ यस, झूठ है ही नहीं You इसमें। can check it on Instagram. You can follow me on my Instagram. वहाँ वो पे लास्ट check में कर सकते करेंगे, हो। वो बहुत- काम लास्ट में करेंगे, अभी से लोगों को नहीं भगाना है ना, सुनने दे लोगों को, ठीक है? हाँ तो भाई कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तुम लोगों के फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं कि यूट्यूब, जब तुम्हें पता चला कि भाई ये हट चुका है? हक दिया। सिंपल। हाँ ठीक है, ये एकदम वो हो गया। मतलब यस ऐसा मेरे को तो ऐसा फर्क नहीं पड़ा, मतलब एज अ क्रिएटर तुझे एज ए फर्क नहीं पड़ा? क्रिएटर भी। और क्योंकि देख लाइक और डिसलाइक अपने लिए तो सेम ही है, क्योंकि कुछ भी हो वीडियो तो प्रमोट हो रही है। एंगेजमेंट तो यूट्यूब को लाइक और डिसलाइक एंगेजमेंट सेम ही दिखती है, भले तुम्हारा कोई वीडियो लाइक करे डिसलाइक करे। और रही बात मतलब एज ए क्रिएटर अच्छी बात है, क्योंकि देख ना कभी कभी डिसलाइक्स देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स। यही चीज पता है हाँ। अपने मैट कोवाल भैया है ना, एक सेकंड रुक But जा। but हाँ तो जो और होता है वो But एक dislike चीज तो मुझे ultimately लगता है। आपको पैटर्न पे दिखेंगे ही ना, तो डिमोटिवेशन और एक अपडेट हुआ है तुम लोग को पता है कि नहीं मालूम नहीं, बट यूट्यूब स्टूडियो में देख अपने व्यूज जब कम आते थे तब ऐसा रेड एरो नीचे दिखता था। हाँ हाँ उसको मुझे तो रेड रोज ही हटा दिखता दिया। है। हाँ वो ग्रे कर दिया अभी। हाँ मैं थोड़ा सा मैं तो स्टूडियो का पासवर्ड ही भूल गया। हाँ हाँ मतलब ऊपर जा रहे तब ग्रीन दिखाएगा, बट नीचे हाँ जा रहे तब रेड तो रेड नहीं दिखेगा, अभी ग्रे ग्रे है, दिखेगा। राइट। हाँ हाँ बट It पता is है, because हाँ like
आई गेस वो यूट्यूब क्रिएटर की हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा है शायद इसलिए। देख बिगाड़ पता कौन है, रहा है? नहीं देख बिगाड़ भी वही रहा है, सुधार भी वही रहा है। सलमान बॉय यूट्यूब इज लाइक स्टेपमॉम, यूट्यूब इज लाइक स्टेपमॉम, तो सुधारने के लिए बिगाड़। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। नहीं भाई देख, बेसिकली पता है यूट्यूब ने भी यही जस्टिफिकेशन दिया है कि देख मैं पढ़ के बताता हूँ बेसिकली कि पब्लिक लाइक और डिस्काउंट जो डिसलाइक काउंट है, तो डिस्काउंट बोल रहा हूँ मैं, इतना मगन हो गया हूँ अपने दोस्तों के पॉडकास्ट पे आने पे। हाँ तो बेसिकली उन्होंने भी यही रीजनिंग दी है एग्जैक्टली ऑन पेपर कि जो डीमोटिवेशन होता है, जो मेंटल हेल्थ है क्रिएटर्स की, और जो डिसलाइक कैंपेनिंग चलती है, बेसिकली जो तुम्हारा कैंसिल कल्चर है, तो उसको हटाने के लिए किया है। बट अगर तुम मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, तो सरासर सिंपल आसान भाषा में 100 बात की एक बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मेंटल हेल्थ की इतनी चिंता है तो हाँ, साले ट्रेंडिंग पेज पे से शॉर्ट्स हटाओ सारे। टी सीरीज को हटा दो ना, हाँ। अगर इतनी मेंटल हेल्थ की चिंता है तो टी सीरीज को हटा दो। अरे शॉर्ट्स शॉर्ट्स कौन उड़ा हटा दो। दो, इतनी मेंटल शॉर्ट्स कौन हेल्थ हटा तुम्हें दो। है। तो तुम्हें हाँ, क्या वो भी लगता है, है। तुम्हारे हिसाब से क्या मोटिव है उनका मेन, ऑन पेपर नहीं? या हाँ, तुम ऑब्वियसली एग्री करते हो, बिजनेस या फिर तुम पॉइंट ऑफ एग्री करते हो व्यू से। कि हाँ ये सही है, क्रिएटर के लिए ही किया है? अब देख, मुझे तो लगता है कि भूल गया मैं। क्या कोई लगता बात है नहीं, मेरे? हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। बट हाँ, डिसलाइक अगर हटा दिया तो हम्म। ज्यादातर लोग लाइक डिस्करेज नहीं होंगे यूट्यूब शुरू करने से, जो कर रहे, हाँ। जो हाँ जिनका चालू है। और फॉर एग्जाम्पल अब जो है क्रिएटर जो बढ़ नहीं रहे, वो और डालेंगे। नहीं तो साहिल पहले भाई अगर वीडियोस डाल दो, डिसलाइक्स ज्यादा पैरी होते बोल थे। रहा है वीडियोस डालो जल्दी जल्दी। डाल दूंगा, कल डाल दूंगा। देख, अब कोई डिस्करेज नहीं करेगा भाई तेरे को। हाँ। हाँ। नहीं भाई, डिस्करेज वाले तो टाउन में ही है ना, ऑफलाइन IRL इन द टाउन। बट अब मेरे को तो इतने डिसलाइक्स आते नहीं थे, लाइक 3-4 ही आते थे। अरे तो तू तो अभी भी स्टड है 3-4 ना, ही आते हैं, शायद तू तो आगे अपने, जाके नंबर बढ़े। तू स्कूल का स्टड है ना, तेरे को लोग डिमोटिवेट नहीं करते। हमारे स्कूल में नहीं होता ऐसा। नहीं हमारे भाई स्कूल देख, में इफ यू आउट ऑफ द बॉक्स यू आर बुली। देख स्कूल के स्टड बेसिकली हम ना, भी नहीं है, पर हाँ हाँ वो है। देख बेसिकली मेरा तो यही कहना है कि YouTube एज अ क्रिएटर चाहता है कि और क्रिएटर्स आए, और क्रिएटर्स हाँ आएंगे तो हाँ और हाँ, वही कंटेंट वही प्रोड्यूस होगा, बोलना चाहता था। और कंटेंट प्रोड्यूस होगा तो एड्स आएंगे, हाँ एड्स आएंगे तो उनकी कंपनीज आएंगी पिच इन करने के लिए, उनको और पैसा आएगा। And यही नहीं अभी से ही नहीं, तुम्हें याद होगा मैंने ट्विटर पर डाला था कि मेरे चैनल पे ऐड आने स्टार्ट हो गए, राइट? हाँ हाँ, वो हाँ तूने तो ट्विटर पे, तूने बता दिया था इंस्टाग्राम पे, हाँ इसलिए मैंने मुझे। खुद में स्क्रीनशॉट डाल के तेरे को दे दिया था। हाँ हाँ। हाँ, तो देख हुआ क्या, मैं बैठा हुआ था और पापा अचानक से आए कि भाई तुम्हारे तो ऐड चालू हो गए चैनल पे, अरे वाह पार्टी कब दे रहे हो? मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से? मैंने कहा कहाँ कहाँ किस चीज की बात कर रहे हो आप, दिखाओ। दिखाया तो ऐड चल रहा है वीडियो पे, मैं ऐसे ब्लोन अप, भाई ये क्या हो गया? लगता है हम सफल हो गए भाई, 5 साल के बाद सफल हो गए। हम स्टूडियो पे गए, हम लैपटॉप खोला, वेबसाइट वाला स्टूडियो खोला, उसमें देखा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? फिर जाके जब मैंने हाँ, तो देख हुआ क्या, बेसिकली मैं गया फिर देखा तो मुझे समझ में ये आया कि अब YouTube ने अपनी ही पॉलिसी को जो था उस पे ही अपोजिट चीजें कर रहे हैं, वो उसके ऊपर ही अलग अलग चीजें हो रही हैं कि तुम्हें तो पहले 4000 आवर्स चाहिए थे, उसके बाद तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, तब तुम्हारे पे ऐड चलाएंगे हम, पार्टनर प्रोग्राम है। बट अभी क्या कर रहे हैं वो, अभी उनकी मर्जी है, जो वीडियोस पे ऐड चलाना है वो चलाएंगे। बेसिकली तुम्हारे वीडियोस से जो भी पैसा आ रहा है वो उनके पास ही जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। डिक्टेटरशिप। हाँ तो भाई यही बात है ना, फिर फायदा ही क्या हुआ? बेसिकली यही तो सबसे बड़ा डीमोटिवेशन हो गया कि तुम भाई साहब, अभी मेरे ये मुंह से ये अपशब्द निकल जाएगा ये भाई साहब यूट्यूब तुम सीन इंडिया हाँ का पॉलिटिक्स क्यों बन रहा है? भाई मैं नहीं, बोलने वाला था, मुझे को डर लग रहा था। एक तरफ वैसे तुम भी बोल रहे कौन हो, देखता है हमें? हाँ कौन देखता मैं तो है? मैंने किससे डर रहे मैं तो हो? मैंने सर के नाम पापा से। भाई एक तरफ तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा क्रिएटर की मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो, और दूसरी तरफ तुम ये काम कर रहे हो। एक तो अगर उनको क्रिएटर वाला जो इंडिया का पेज है उस पे तुम मीम चलाते हो, उस पे तुम क्रिएटर की हेल्प तो कर नहीं रहे हो, जो पॉपुलर क्रिएटर्स है उनको ही और पॉपुलर बना रहे हो तुम मीम चला के। ठीक है, तो एक तो बड़ा यही और डिमोटिवेशन, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, ठीक है।
और कोई तुम बात शॉर्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो भाई। लेजिट तो अगर उसकी वो लाइक प्रोफाइल हाँ पिक्चर अरे देखेगा कुछ YouTube के भी content में, मतलब वो ऐसा पूरा 2016 वाला जोन वापस आ गया ऐसा लग रहा है। टाइम कुछ भाई। भी और ट्रेंडिंग पेज पे, कुछ लॉन्ग भी। फॉर्म लॉन्ग फॉर्म गया तुम्हारा, अब बनाना है तो यही बनाओ। यार देख भाई, अब तो अब मैं माइक क्या लिया है करूँ? मैंने। अब अब माइक नहीं नहीं, लिया है, अब अब मैं डिमोटिवेट मत कर। साला डिसलाइक से मैं क्या करूँ अनव्यूज भाई? मैं डिमोटिवेट करता है यार। 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं क्या करूँ? 15-15 सेकंड करके अपलोड करूँ? नहीं भाई ठीक है, मैं यही है। आवेश दरबार बन जाऊँ, हॉरर स्टोरी 15 सेकंड के फॉर्म में अपलोड करूँ, फिर एंड में हक दूँ? पर नहीं यार, कुछ लोग है जो देखना पसंद करते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तादाद कम है पर है। Extinction, on the verge of हाँ extinction. Those audience are extinct. बट नहीं लाइक कभी तो उनको यार बोर तो होते अब रहेंगे ना देखना, ऐसे दो कंटेंट साल से। से 2 साल से जो कंटेंट एपेटाइट चल रहा है, तो वही तो आ गया है ना, ऑडियंस के जो चेंजेस हैं। क्योंकि नहीं वो अब देख शॉर्ट्स तो बढ़ ही रहा है बट साइड बाय साइड बहुत सारे क्रिएटर जैसे बाहर भी निकल रहे हैं जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल रहे हैं। नहीं देख, तो शॉर्ट्स उनको पता देख है, के साथ हाँ तसल्ली मिलती है। राइट, शॉर्ट्स और रील्स काफी बढ़िया है अगर तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो तो। हाँ एक्चुअली बट है नहीं ना कोई ऐसा हम्म जो वैल्यू ऐड कर रहा है। एक तो कोई ना कोई टोटके बता रहा है, या हम्म कोई ऐसी पुराने फैक्ट्स बता रहा है, या इसमें वो डाल के पियो वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। पुरानी चीजें चल रही हैं, राइट। हाँ पुरानी पुरानी से देख याद आया, हाँ। वही, या हम्म कोई रिलेटेबल बनने की कोशिश कर रहा है और व्यूज मिल रहे हैं। यही तो दिक्कत है। या तो फिर कोई तुम्हें अपनी लॉन्ग रील्स बनानी अच्छी लगती है छोटा तुम्हें? करके डाल रहा है। ऑनेस्टली बताओ। नहीं साहिल, नहीं साहिल तुम्हें तो बिल्कुल अच्छी नहीं। लगने लगी है ना, तुम्हें तो अच्छी लगने लगी है। मैं सच कहूँ, देख बहुत नहीं सारे भाई, क्रिएटर्स जो है ना यूट्यूब पे भी, हाँ। जो अभी रील्स बनाते हैं, हम्म मतलब पहले से जो बड़े बड़े क्रिएटर उनको भी रील्स बनाना पसंद नहीं है। हम्म, रील्स में वो मजा है ही नहीं। लाइक वो डोपामिन रिलीज मिलता है ना जब हम पूरा एक बड़ा 7-8 मिनट का वीडियो बनाते हैं, हाँ। 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, और ऐसा हम्म सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना वो रील बनाते वक्त नहीं मिलता। वो हम्म, मिलता ही नहीं। तो रील तो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है ताकि तुम मार्केट से निकल हाँ जाओ ना। रीच मिले तुम्हें, हाँ और वो वही। भी पता है एक तरह से नहीं मिल रही है तुम्हें। 3,000 10,000 व्यूज आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई वो हाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तुम्हें फॉलो कर रहा है कोई, वही। ना सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, वो बस नंबर्स ही आ हाँ रहे हैं बस तुम्हें। मैंने यही चीज नोटिस की है कि 8,000 दिखने के लिए 8,000 हैं, अगर वही 8,000 यूट्यूब पे होते हैं वो मैटर करते हैं। 8,000 में से 2-3 जन ही तुम्हारा प्रोफाइल स्टॉक करते रहेंगे, 2-3 ज्यादा जन। से ज्यादा। और और ज्यादा भाई से ज्यादा वही, ज्यादा से वो। मैंने मैंने एक चीज नोटिस की, अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, तुम्हें हम्म एकदम 30 से 30 कंटेंट, लाइक अगर एक आंटी रोटी बना रही है उस पे 500 के लाइक। कुकिंग, यार हाँ कुकिंग चल रहा है, कुकिंग चल रहा है ना इंडिया में, मतलब चल नहीं रहा है। तुम रेसिपी, नहीं वैसा अरे नहीं बोल रहा है वो। वैसा नहीं वो बोल रहा है करता। ऐसे ही टाइम पास, कोई चाइनीस आंटी अच्छा, अगर ओके रोटी बना रही है ओके तो ओके उसके ओके, पीछे हाँ। कुछ अलग म्यूजिक है और वो रैंडम। हाँ हाँ, अगर हम्म। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन है और तुम चलने का वीडियो बना रहे हो भाई, 2 मिलियन लाइक। दो क्या दो मिलियन मिलियन मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं देखा होगा ऐसी ऐसी चीज पे। वो तो है। बट रील्स एक्चुअली देखा जाए ना तो इंस्टाग्राम ही प्रमोट कर रहा है। मतलब अगर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड भी डालू ना तो भी वो दिखता है ज्यादा से हाँ ज्यादा। मैंने भी बहुत ट्राई कर लिया है, सब करके नहीं हो रहा। हाँ तो इंस्टाग्राम की गलती है और ऑडियंस की गलती। अगर सामने आएगा तो हम करें क्या? भाई हम्म, रील्स की वजह से दिखेगा मेरा ना। खाना खाना बढ़ गया। रील्स की वजह से मेरा खाना खाना बढ़ गया, बिकॉज मुझे इतनी फूड रील्स आती है ना, बार बार कुछ ना कुछ जाके खा रहा हूँ। हॉस्टल में इसकी वजह से मेरा मंथली एक्सपेंस बढ़ चुका है। सलीम अंकल, ओह। इसको पिंजरे में डालो आप। नहीं भाई, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, थोड़ा हम उस तरफ ड्रिफ्ट हो गए जो पुरानी पॉडकास्ट पे अपन ने बातें की थी, पुरानी यादें ताजा हो गई। बट अगर हम फिर से बात कर लें। नॉस्टैल्जिया। यस, तुम मेरे चैप्टर्स लिखने का काम बढ़ा रहे हो, बस मैं यही देखता रहूंगा भाई कौन सी कौन बात हुई है, लिखो लिखो भाई लिखो। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। देख, अगर अपन लाइक और डिसलाइक की बातें करें ना, ये सब बंद कर, तू गंदी चीजें बंद कर इसको। तो, तो भाई अगर देख बात करें ना लाइक और डिसलाइक की, तो ये दोनों मिलके एक रेशियो बनाता है, तुम दोनों को पता होगा, राइट? लाइक टू डिसलाइक रेशियो। हम्म। तो तुम्हारे हिसाब से
ऑन अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, तुम भी ऑडियंस ही हो, तुम बेसिकली क्रिएटर तो ही, बट तुम कंज्यूम भी बहुत कर रहे हो। तो अगर तुम अपना एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो क्या ये चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है वाइल कंज्यूमिंग कंटेंट, या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आके क्या पावर है उसकी, डिसलाइक बटन की और लाइक टू डिसलाइक रेशियो की, तुम्हारे हिसाब से क्या मदद करता है तुम्हारी? मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से एज अ ऑडियंस मदद करेगा। हम्म अगर तुम मतलब अगर तुम हेट फैलाना चाहते हो और अगर तुम हम्म उस क्रिएटर को डिमोटिवेट करना, हाँ तो बहुत काम करेगा। बट हम्म अगर लाइक, क्योंकि देख, हम लाइक्स और डिसलाइक्स में बाद में देखते हैं ना, पहले तो हम वीडियो ही देखते हैं, हम्म फिर हम देखते हैं कि बाद में कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक्स है। एग्जैक्टली लाइक ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो खोला पहले हम देखते भाई कितने हाँ, डिसलाइक, अंटे और अनलेस मेरे को अगर फेवरेट की वीडियो नहीं है कोई नहीं देखता। हाँ, और अगर तुम्हें वो वीडियो पसंद आया तो लाइक और डिसलाइक रेशियो मैटर भी नहीं करता तुम्हें, अगर तुम्हें पसंद आया है वीडियो तो आई एग्री। मुझे लगता है ये मुझे लगता है ये 2 साल रिवाइंड निकाला, ज्यादा डिसलाइक्स इनको दिखे, इन लोगों ने डिसलाइक बटन ही हिला दिया पूरा। अब सबको हम वही लग डालेंगे रहा रिवाइंड, अब दो तुम डिसलाइक्स हमें। भाई देखो, तुम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई काइंड ऑफ अग्री, बट मेरे एक डिफरेंट अप्रोच है कि अगर तुम एक वीडियो को क्लिक करते हो ना, तो तुम जब डिसलाइक बटन को देखते हो या फिर लाइक बटन को देखते हो, तो तुम्हें एक एक्चुअल में एक थोड़ा सा फर्स्ट ग्लांस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो मैंने टाइप किया यूट्यूब पे कि हाउ टू रिपेयर अ नॉन वर्किंग लॉजिटेक माउस। जब मैं क्लिक करूंगा वीडियो पे, तो उस पर बेसिकली मुझे सबसे पहले टाइटल दिखेगा, लाइक टू डिसलाइक दिखेंगे। अगर इन केस डिसलाइक बहुत ज्यादा हुए, तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, राइट, कि भाई इतने डिसलाइक्स क्यों हैं। फिर उधर से मुझे पता चलेगा कि भाई इसने थोड़ा गलत समझा है, कोई काम का नहीं है वीडियो। समझ रहे हो? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मे बी अगर तुम एक वीडियो को खोलो, तो वो तुम्हें एक फर्स्ट ग्लांस दे दे डिसलाइक बटन, राइट, एक फर्स्ट इंप्रेशन दे दे कि भाई क्या ये सही में वर्थ है मेरा टाइम स्पेंड करने का, ये वीडियो 14 मिनट का जो मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, या फिर मुझे इस ट्राइपॉड को असेंबल करना है, तो मैं वो देख रहा हूँ। हालांकि बहुत इजी काम है, बट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे वीडियोस में आई थिंक कि डिसलाइक बटन एक बहुत बड़ी पावर होल्ड करता है, कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता, तुम तुरंत देख लेते हो कि इसको डिसलाइक किस लिए मिला है, जेन्युइनली मिला है या फिर ऐसे ही सब लोगों ने डिसलाइक कर दिया है। तो आई थिंक कि मेनली तो यही चीजें हैं कि डिसलाइक बटन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट था ऑन ऑडियंस पर्सपेक्टिव। बट यस, जैसा तुम दोनों ने बोला कि बहुत लोग भी हैं जो नहीं देखते हैं, सीधा वीडियोस देखते हैं। हाँ, वही, अभी तो लाइक वो अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है लोगों हम्म का, तो लोग डायरेक्ट वीडियो पे जाते हैं, देखते हैं, और शायद लाइक करना भी भूल, मतलब छोड़ ही देते हैं, लाइक और डिसलाइक छोड़ी, अगर हाँ पसंद आया नहीं आया हम्म उतना टाइम नहीं लेता कोई, सिर्फ रिएक्ट करते और छोड़ देते बस। बट डू यू थिंक, यस और नो बताना, कि डू यू थिंक कि हाइडिंग द डिसलाइक बटन काइंड ऑफ हाइड्स अ रियली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स? नहीं, मेरे क्रिएटर को के नहीं लिए लगता। तो है बट ऑडियंस क्या ही करेगी इतना सब कुछ जान के। ओके। क्रिएटर को तो क्रिएटर को भी नहीं दिखेगा ना नहीं, क्रिएटर डिसलाइक। को नहीं दिखेगा, क्रिएटर बैक एंड पे उसको हाँ, दिखेगा, वही इतनी वीडियो क्रिएटर को तो दिखेगा। दिखेगा स्टूडियोज में। हाँ, तो बैकएंड। वो हम्म क्रिएटर के लिए वो अपडेट है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ और कैसे भी ऑडियंस करके क्या ही दिखेगा ही। करेगी। हाँ, हम्म तो वो ऑडियंस के लिए है, मतलब ऑडियंस को देखेगा, हाँ इधर सब अच्छा अच्छा है, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ज्वाइन करने के बाद हाँ ये लो भाई। तो बेसिकली हो सकता है कि इस अपडेट के आने से यूजर एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट पड़े, क्रिएटर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑडियंस को हल्का सा यूजर एक्सपीरियंस में हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि अगर तुम एल्गोरिदम कोई बात है कंटिन्यू। तो भाई एक जो अपना जो वीडियो नहीं आया था जिसमें मैट कोवाल भैया ने पूरा एक्सप्लेन किया है यूट्यूब का पर्सपेक्टिव कि उनका क्या विजन है डिसलाइक बटन को डिसेबल करने का, तो उसमें ही एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट बोला है, मुझे थोड़ा अजीब, हो सकता है तुम्हें ना लगे, बट मुझे लगा कि ही इज सेइंग दैट रिमूविंग द डिसलाइक बटन वोंट इवन मैटर टू ऑडियंस एज अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइक नहीं बोला है, बट अदर प्लेटफॉर्म्स डोंट इवन हैव इट। तो अदर प्लेटफॉर्म से मेरा उनका मतलब यही हुआ ना, इंस्टाग्राम हो गया तुम्हारा क्योंकि कंपिटिटिंग है, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया। तो तुम्हें ये स्टेटमेंट से बेसिकली क्या फर्स्ट इंप्रेशन आ रहे अगर दूसरों के पास नहीं है तो चूतिया क्या हम भी स्टेटमेंट है बहुत। हैं?
मुझे यही मुझे कहूंगा। मुझे बहुत एडिटिंग लगने वाली है भाई। अरे हाँ मतलब एक ही तो प्लेटफॉर्म है जिधर था हाँ डिसलाइक बटन। हाँ भाई। बट अगर तुम लाइक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं मेरे पहले स्टेटमेंट से पूरा सहमत हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, हाँ बट वो उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा तो जस्टिफाई करना चाहिए लोगों को, ऐसे चूते स्टेटमेंट हाँ देगा तो राइट। कैसा और होगा? उसमें रीजन की कमी पड़ी है तो इसने ये रीजन डाला है, बाकी कोई सेंस हाँ बनाता नहीं वही, है इसे। लाइक अच्छा रीजन दे भाई तू, मतलब ऐसा कुछ भी आई रीजन देगा थिंक तो कैसे चलेगा? हाँ, बट मुझे क्या लगता है यूट्यूब अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह है भी नहीं। बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स है हाँ वो रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म्स है, और ये एक तरह का गूगल के बाद सबसे बड़ा सर्च इंजन है, राइट? यूट्यूब हाँ सर्च और बार सुनना है उधर। सेकेंड हाँ। सेकेंडली, अगर इसका दूसरे कॉम्पिटिशन देखें, जैसे कि अगर हम्म हम इंस्टाग्राम देखें, हम्म इंस्टाग्राम और यूट्यूब में एक सिमिलरिटी, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाला जो है सीन, ठीक है, हम्म वो हम्म मेजर सिमिलरिटी है। तो अगर इंस्टाग्राम पे वहां पे सिर्फ लाइक का बटन है, तो अगर यूट्यूब शॉर्ट्स भी खोल के देखो तो वहां पे डिसलाइक ऑलरेडी हिडन ही है। उसमें सिर्फ हाँ तुम्हें लाइक के काउंट दिखाता है, उधर डिसलाइक के काउंट नहीं दिखाता है तुमको। तो उधर अगर तुम्हें बस वो उनके साथ ही compete करना है तो तुम्हारे पास वो फीचर ऑलरेडी है, तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से हटाने का कोई सेंस बनाता है ही नहीं वो चीज। एंड आई थिंक ये वही। सारी बात घूम फिर के वही आ जाती है, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। बट आई थिंक कि हाँ एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम कॉन्शियसली जाते हो, एक मोटिव के साथ जाते हो, दिमाग में एक चीज रखे कि मुझे ये देखना है, राइट? तुम हम्म कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो यूट्यूब पे, रादर देन तुम रील्स सबकॉन्शियसली ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हो, ठीक है? वहां तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है। बट हम्म ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है ऑडियंस के लिए, राइट? तुम रील्स पे फीडबैक नहीं दोगे। स्क्रॉल किया अच्छा नहीं लगा, स्क्रॉल किया अच्छा लग गया तो उसको ठीक है हार्ट दे दिया, लाइक दैट। बट हाँ मतलब हाँ। सेव कर रील लिया, पे से शेयर कर लिया। कांस्टेंट फॉलोअर्स नहीं रहते जैसे यूट्यूब पे रहते। तो अब आई यूट्यूब थिंक पे कि हाँ। एक पर्टिकुलर क्रिएटर के फॉलोअर्स रहते जो उसे देखने आते हैं। हम्म रील्स अब पे तुम रील किसी को पर्टिकुलरली देखने नहीं जाते, वो दिखाया जाता है तुम्हें। दैट्स व्हाई इट इज अ और रील रिकमेंडेशंस, वो क्या हाँ बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। वही। हम्म हाँ रील पे एक्सक्लूसिविटी नहीं होती। जैसे कि अब पहले का कंटेंट है, अगर रील वाला कोई मीम डाला है तो वो शायद मैं अपने पे डाल सकता हूँ, तो लोग शायद भूल जाएंगे, उनको लगे वो मेरा कंटेंट है। बट यूट्यूब पे रहती है, यूट्यूब पे पता होता है कि हम्म हाँ भाई पहले का कंटेंट है, बट साहिल ने डाला है अपने चैनल पे, हम्म तो उससे इतना रील और उसे अफेक्ट नहीं करता। बेसिकली तुम यूट्यूब पे एक मोटिव के साथ जाते हो, दैट्स द एंड हाँ ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, राइट? कि यप। भाई बात ही नहीं बनती है, तुम ऐसा बोल रहे हो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और तुमने हाँ हमसे पूछा भी फर्क पड़ रहा है नहीं और पड़ रहा? यूट्यूब पे वैसे भी ज्यादा हाँ पब्लिक जाती है। वही तो। साहिल ने जो अभी चीज बोली ना, तुमने हमसे पूछा, यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद हाँ तुम्हारी सुनता है कुछ हद तक, राइट? क्रिएटर की बात सुनता है, ऑडियंस की बात सुनता है, क्योंकि इंस्टाग्राम नहीं सुनता। तुम वही। कितने ही फीडबैक दे दो, यूट्यूब करता भी है उस पे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो और आई थिंक कि ये रिमूव करने से पहले हो वही, सकता है और उन लोगों के यूट्यूब पास कुछ अपने में ऑल्टरनेटिव एक होना अलग चाहिए था। प्लेटफॉर्म है। हाँ वही, राइट। हम्म तो ये भी एक वही। बात बहुत सही है कि भाई तुमने फीडबैक लिया नहीं, उससे पहले काम कर दिया। तो अब फीडबैक लेके क्या फायदा, तुमने हटा ही दिया है। कोई नहीं, सब ऐसा उनको बिजनेस नहीं ट्रिक रखना समझ है। होगा उनको, उनको नहीं रखना होगा रिश्ता हमारे साथ, हमें क्या। दैट्स वाई, वही तो पैरी ने जो बोला, मुझे भी फर्स्ट इंप्रेशन यही थी कि ये बिजनेस मोटिव से ही किया है, जिससे और लोग आए और कंटेंट बने, राइट? हाँ तो इसमें इन वही। लोगों ने जो चीज बोली है ना कि मेंटल हेल्थ। काफी आगे सोच चुकी है ये। हाँ, आई वुड लाइक टू से दैट कि इसमें जो इन लोगों ने जस्टिफिकेशन मेंटल दिया है हेल्थ ना सिर्फ कि बहाना हाँ, है। तो अगर हम एक, ये देखिए कंपैरिजन थोड़ा अजीब सा लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ तुम्हें, पहले ही बता रहा हूँ, बट आई थिंक Amazon को रखो, यूट्यूब को रखो। Amazon पे तुम अपना मनी स्पेंड करते हो, यूट्यूब पे तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो, राइट? अब अगर एक दिन हम्म Amazon अपने प्रोडक्ट्स के नीचे से रिव्यू सेक्शन हटा दे, तो हाँ, शिक्षण। तो अगर एक इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम Amazon खोल रहे हो, एक दिन तुम्हें साहिल को PS5 मंगवाना है, ठीक है? तो हंस हंस क्यों रहे हो बे तुम? हंस क्यों रहे हो? नहीं राइट। पर वो हाँ जो तू बोलना चाहता है वो समझ गया, बट हाँ अमेजोन के पास वो एक ही जरिया है हाँ राइट। रिव्यूज का। यूट्यूब पे डिसलाइक एक जरिया नहीं है, कमेंट्स पे तो हम्म तुम जाओगे ही जाओगे। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू दिस आर्ग्यूमेंट हाँ कि
अगर तूने जो बोला ना कमेंट्स पे जाओगे, अगर समझ हाँ ले मेरे जैसा एक बंदा है जो पैरीपुल को बहुत ज्यादा हेट करता है, उसका वीडियो आया नहीं कि डिसलाइक कर दिया, ठीक है, हाँ सत्य नहीं बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सच बोल भाई, नहीं गलती भाई, से सच निकल गया। सच बोल, तुम यार सच बोल। नहीं भाई नहीं, नहीं तो देख, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पैरी का कंटेंट पसंद नहीं है, मैं बहुत एक ईगोइस्टिक व्यूअर हूँ, हाँ तुरंत डिसलाइक मारा, हम्म ठीक है, मेरा हम्म उधर पे ईगो सेटिस्फाई हो गया कि भाई को डिसलाइक कर हम्म दिया मैंने। अब तू सोच, हम्म, अगर डिसलाइक बटन हट चुका है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कमेंट्स में ही जाऊंगा ना, राइट? जो तूने बात करी अभी कि भाई हाँ सारे जो भी चीजें वो कमेंट पे आउटरीच जो भी होगा, जो भी चीजें होंगी वो हेटरेट हाँ कमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। और वो बहुत ही गलत होगा। और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इंडिया हाँ की तो मैं बात ही नहीं करने वाला इस पॉडकास्ट में, फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ डजेंट मैटर। वो भाई वाइल्ड हिट है लाइक वो। ही चल रहा है, हार्ट दे दो वरना मम्मी मर जाएंगी, हार्ट हार्ट नहीं दिया तो मम्मी मर जाएंगी, हार्ट दे दो तो 100 साल जिलेंगी। मैं बात ही नहीं कर रहा भाई इंडिया के सीन की तो हाँ ये सीन है एंड, बट तो वही हाँ हो गया ना आप तू, पैरी वो तूने तू फिर किया कंपैरिजन कर हाथ, रहा था। पैरी हाथ किया फिर। हाँ तो देख, बेसिकली ये एग्जांपल थोड़ा सा नाइव है, बट Amazon हम्म अगर एक दिन के लिए बोल दे कि हमें हमारे सेलर्स की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है तुम्हारे रिव्यू से, तो हम हटा रहे हैं सेक्शन, कैसा लगेगा सुनने में? अगर अगर हटा देगी भाई तो वाट लग जाएगी, क्योंकि अमेजोन देख, हाँ, बिजनेस मॉडल हिल तू जाएगा पूरा। हाँ क्योंकि हम्म, तू अगर तू पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसमें और हाँ तेरे पास वो चीज आ रही है और अगर खराब निकली तो भाई हम्म, तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट वीडियो का क्या है, तू देखेगा, दो तीन सेकंड अफसोस करेगा कि क्या देख लिया देख मैंने, लिया, फिर राइट। तू मूव ऑन करेगा। नहीं बट यार, हाँ पैरी मैं क्यूरियस यहाँ एक एक चीज सोचता रहता हूँ। पैरी एनिमेशन मैं यहाँ पे एकदम हाँ क्लीशे क्लीशे एकदम बोलने वाला हूँ बात, टाइम इज मनी। हाँ ठीक है, तो यूट्यूब पे तुम टाइम दे रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, बट यस, जो तुमने बात बोली इट इज हाँ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और और वो पूरा लाइक, मैं अब मोस्ट ऑफ द इंडियंस तो यही करते रहेंगे कि रिव्यू ही पढ़ते रहेंगे देखने से हाँ पहले। अब तू कोई राइट, वीडियो देखने से पहले थोड़ी कमेंट्स पढ़ेगा, तू वीडियो देखेगा और बाद में कमेंट्स पढ़ेगा। बट तुम्हें पता है पर तू यूट्यूब का भी कोई पहले प्रोडक्ट ऐसा ही लेने सीन से था। पहले हम्म रिव्यूज देखेगा। हम्म क्या? यूट्यूब का भी पहले ऐसा ही था कि वो रेटिंग्स चलती थी यूट्यूब पे, लाइक डिसलाइक नहीं था बहुत सालों पहले, हाँ समझ रहे हैं? हाँ Amazon की तरह ही सीन था जैसा कि रेडिट, जैसा अभी रेडिट पे होता हाँ है वैसा ना। राइट, हाँ हाँ रेडिट पे तो क्या अपवोट डाउनवोट है आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ अपवर्ड हाँ बट डाउनवर्ड है। हाँ हम्म तो भाई अब अपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट आ गए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है बेसिकली, क्या इस YouTube के मूव से क्लिकबेटी टाइटल्स को ज्यादा वो मिल जाएगा, लोग मतलब अब डरेंगे नहीं क्लिकबेट डालने से, राइट? डिसलाइक हट चुका है, हाँ क्लिकबेट एग्जैक्टली बढ़ एग्जैक्टली। जाएगा, क्लिकबेट कंटेंट विल। हाँ पेट बढ़ जाएंगे और कंटेंट की क्वालिटी होगी वो गिर जाएगी। बट नहीं, एक तरह से बढ़ भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि अगर बढ़ेगी तो कमेंट्स में तो गालियां पड़ेंगी उनको। बट बेसिकली ये तो तूने जो बोला वो बहुत सही है, बट आई थिंक कि क्लिकबेट के बढ़ने के साथ साथ उसमें जो एक यूट्यूब फिल्टर करता था या गेट कीपिंग करता था, उसमें भी बहुत दिक्कत आने वाली है यूट्यूब को। हर कंटेंट वो नहीं देख पाएगा कैसा है क्या है, क्योंकि उनको बेसिकली एक डिसलाइक से ही पता चलता था कि क्या होने वाला है। अब आई डोंट थिंक कि वो हाँ कुछ बट और करने वाले हैं। डिसलाइक का बट बटन उन लोगों ने खुद के उनके सर्वर में तो रहेगा ना, डिसलाइक काउंट आई तो थिंक रहेगा हाँ। ना। उनको ऐसा हम्म कुछ तो किया रहेगा। हाँ उनको काउंट तो हो दिखेगा जाएगा। ऐसा कुछ। हाँ हम्म वो लोग खुद का ये नहीं बदलेंगे, मुझे हो सकता नहीं है, लगता। हाँ हो सकता है, नहीं खुद का नहीं बदलने वाले भाई, वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, नहीं बदलेंगे, हाँ ऑडियंस के लिए ही वही, हटाई गई है। हाँ वही तो वो उनको उनका प्रॉब्लम नहीं है कोई। प्रॉब्लम हम्म देख, प्रॉब्लम एक तरह से जाएगा, इतना मैसिव भी नहीं है, मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है। फर्क तो कुछ लोगों को तो रियलाइज भी नहीं हो रहेगा कि हट गया है बटन, हाँ लाइक ऐसा कमेंट है। नीचे से ऊपर आ गए थे जो इन लोगों ने अपडेट किया है हाँ कमेंट वाला, तो हाँ भाई हाँ मतलब अपडेट सजेस्ट कौन करता है, ये मुझे मिलवा दो एक बार।
एडवांस वो याद है वो क्वालिटी आती थी कितनी बढ़िया, और अब एडवांस में जाओ फिर हाँ। क्वालिटी आएगी। भाई अरे कौन कर रहा है, हाँ वो भाई वो भाई भी वो घटिया है, पता वो नहीं घटिया है। क्यों, क्या ही हवा है वो। कौन कर रहा है भाई, मिलवा दो एक बार, सजेशन कौन दे रहा है, मिलवा दो। पता नहीं कैसा इंटरफेस बना दिया यूट्यूब बट ने। डू यू थिंक कैंसिल कल्चर एंड हो जाएगा एक तरह से? नहीं नहीं। भाई, कैंसिल कल्चर है। वो भाई एंड नहीं कैंसल होगा, वो कल्चर कैसे भी की जारी ही रहेगा। हम हमने तो कैंसिल पूरी कल्चर केस स्टडी बनाई है कैंसल पानी की तरह है, इट विल हो फाइंड सकता इट्स है यार, वे। हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। नहीं रे, बढ़ेगा बढ़ेगा, लाइक कम हो ही वो नहीं सकता ये। दिखेगा कि कम हुआ है बट कम नहीं हुआ है। हम्म। दिखेगा वो भी नहीं। दिखेगा कि देख कम हुआ अगर है बट लाइक की कम भड़ास नहीं हुआ लोग ट्विटर पे जाके है। और निकालेंगे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हाँ, जाके निकालेंगे। और कैंसिल कल्चर क्या है, इन अ वे किसी को अगर मतलब डिफेम कर दिया, हो गया वो कैंसिल, तो उसके लिए तुम्हें लाइक्स की क्या जरूरत है किसी को डिफेम करने के लिए? वो तुम ऐसा उसके उसके नाम पे अगर 10 वीडियो बन गए उसके खिलाफ, हो गया डिफेम भाई। आई अब थिंक कि आईपीएल ब्लॉग के हाँ हाँ, कैंसिल कल्चर की तो ये तुमने उन्हें बात करी, आई थिंक कि हाँ सही है, बट एल्गोरिदम बायस हो सकता है कि यूट्यूब के लिए हेल्प करे ये चीज एल्गोरिदम बायस में, क्योंकि बेसिकली जो तुम्हें रिकमेंडेशन आते हैं उसमें डिसलाइक हमेशा ज्यादा होते हैं ना। तुमने जो देखा हो, कुछ भी अगर तुम्हें रिकमेंडेशन आ गया ऑन अ ग्रेटर स्केल, होता है कभी कभार कि डिसलाइक का काउंट ज्यादा होता है तो तुम देख के हटा देते हो, नहीं देखना मेरे को। अरे हाँ, आजकल तो भाई रिकमेंडेशंस क्यों नोटिफिकेशन आते, राइट। हाँ। क्या तो बकवास है वो भाई। हाँ तो नहीं मुझे देखना मुझे सास पिया का बहू। राइट, तो मुझे क्या लगता है, देखो ऐसे रिकमेंडेशन आते हैं। मेरे को अरे आता है हाँ भाई, महात्मा कुछ मेरे भी को आता आता है है। महात्मा गांधी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, अंडरटेकर। तुम दोनों की हिस्ट्री पता चल रही है मुझे यूट्यूब की। अरे तो रिकमेंडेशंस वही तो, कुछ हाँ। भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से भी आ रहे हैं। अब मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ, मुझे ये रिकमेंड क्यों होता है पता नहीं। हाँ। हम्म, हाँ। ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक कि YouTube के लिए एक अच्छी मारो, चीज हो जाएगी। तुम मारो। YouTube नहीं नहीं देख, ये YouTube के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है कि एल्गोरिदम बायस हट जाएगा, क्योंकि लोगों को दिखने ही नहीं वाला ना, जो रिकमेंडेशन में डिसलाइक आते हैं वो दिखेंगे ही नहीं, तो हो सकता है लोगों को देख लें वीडियो, तो ये एक हम्म। YouTube के लिए हो सकता है अच्छी बात हो, जो वो रिकमेंडेशन भेजते हैं लोग देखेंगे। हम्म। हाँ पर देख, वेले लोग तो वैसे भी देखते ही थे, हाँ। उनको लाइक डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ इंटरनेट देखना वैसे ही देख, कुछ करता है। देखने के लिए लोग कुछ भी देख रहे हैं आजकल। हाँ। वो राइट। लाइक और डिसलाइक को ऐसा कंसिडर ही नहीं करते। अगर वो लोग कंसिडर करते तो भाई ढिंचक पूजा इतनी फेमस नहीं होती पहले भी, अब तू या सोचना, कोई अब तूने कल ये जो ये चीज वो। ये जो चीज बोली है, ये जो चीज बोली है, अब डिसलाइक के हटने से ढिंचक पूजा को तो और लोग देखेंगे ना, ऐसे क्रिएटर्स को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ऐसी ऑडियंस जो हाँ कॉन्शियस पर नहीं है। हम्म हाँ तो पर वही देख, बात है। देखने वाले तो देखेंगे ही ना कैसे भी। बट और यार आई कॉन्श बिलीव, और हाँ। कॉन्शियस ऑडियंस जो नहीं है। हम्म। हाँ बोल बोल। आई बिलीव कि यार अपन जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है यार इम्पैक्ट पड़े, हम्म मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ऑडियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली हैं, अब ये आएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। I would like to hear it from you as we are concluding this part of the podcast कि in one sentence YouTube's dislike button जो भी था, one sentence में अपने opinions दे दो, अपने perspectives दे दो। फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। साहिल, तुम इतना सोच क्यों रहे हो साहिल? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में। राइट, हाँ वही। बिजनेस हाँ, बिजनेस के लिए और कुछ नहीं। क्रिएटर की मेंटल हेल्थ तो बहाना है, बिजनेस जो चलाना है। कॉमेडी हो गई भाई। कॉमेडी। ओके। राइट। पर्सनली मैं बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मेरे को भी पता नहीं चला था कि डिसलाइक बटन गए हैं। जब 2-3 हाँ। यूट्यूबर्स ने ऐसा फिगर आउट किया ना, फिर मेरे को पता है, अरे हाँ भाई डिसलाइक बटन। बट फन फैक्ट, मेरे फोन में अभी भी है डिसलाइक बटन, दिख रहा है मेरे को हाँ सारे नहीं, क्रिएटर्स के अभी डिसलाइक। अभी अभी सुन तो, अभी सबके फोन में है। हटा नहीं, अभी ग्रेजुअली हटाएंगे वो लोग। अच्छा। बट सुनो सुनो, तुमको पता है यूट्यूब का बीच में अभी अभी चेंज हो गया है।
जैसे कि 2 मिलियन व्यूज होते थे तो उसको अभी ऐसे करोड़ और लाख में दिखा वो तो रहा है, यार 20 काफी करोड़ का टाइम से चल रहा है, काफी टाइम से चल हाँ रहा है वो पहले ही हो गया मेरा था। अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मेरा अभी तक मिलियन नहीं आते। हाँ मुझे भी कुछ कुछ मिलियन में दिखते हैं और कुछ लोग करोड़, वो ऐसा कुछ कुछ का ये हो गया है देख मुझे लग रहा यूट्यूब है। ने पता आधे है, में भी बेसिकली यूट्यूब ने ये कर चुका है डिसलाइक वाला। बीच में तुम लोगों को याद होगा 1 महीने के लिए डिसलाइक नहीं था, अगर क्या तुम्हें याद पता, हो तो। नहीं पता? हम तो हाँ किसी को डिसलाइक करते नहीं तो हाँ। तो हमको पता नहीं। बीच में पता है इन लोगों ने टेस्टिंग की थी, उसकी वजह से ही वो एक तरह की रिसर्च चल रही थी इन लोगों की, जो 1 महीने के लिए चला था कि हाँ डिसलाइक हट हाँ चुका था। मेरे चैनल पे भी नहीं आ रहा था डिसलाइक। तो वो एक तरह का इन लोगों का फ्रेमवर्क था, और उस पे इन लोगों ने बोला कि हमने रिसर्च करी, हमने एनालाइज किया हमारी टीम के साथ, और इसलिए हमने डिसीजन लिया कि अब हटा ही रहे हैं। तो वो बेसिकली उनका पूरा वर्क, जो भी बोल सकते हो तुम, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तुमको वर्क वही स्पैन था। हम्म उनको भी पता चल गया कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता लाइक और डिसलाइक के बटन से, हम्म। उनको रियलाइज भी नहीं हुआ। तो चलो भाई अब राइट। बोल के मारते हैं इन लोगों की। बोल सकते हैं, राइट। हम्म। बट तो आई वो थिंक, क्रिएटर्स हाँ, आएंगे। क्रिएटर्स तो आएंगे। ट्रेन का वजह रहेगा। हल्का सा आया। हाँ हाँ वही वो एक बिजनेस का उनका वो है, क्या बोलते हैं। माइंडसेट, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ माइंडसेट, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू की। मॉनिटरी रीजन है क्रिएटर्स भाई। मैं तो आएंगे, वही, पैसा मेरा आएगा, जैसे ये व्यूअरशिप हेडलाइन आई बढ़ेगी। थी ना, जैसे ये हेडलाइन आई थी, स्ट्रेट दिमाग में आ गया था कि भाई मॉनिटरी पर्पज से ही किया है। क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे चैनल पे ऐड चल रहे हैं, तो हमें कैसा लगता है कि हमारे चैनल पे हम्म ऐड चल के, मेरे पापा तो भाई स्किप भी नहीं करते थे। पापा को बोलना पड़ता था, पापा ये ऐड देख के जो आप देख रहे हो वो मेरी जेब में नहीं आएगा पैसा, ये सुजन दीदी के पास जाएगा। 15-15 बार वो वीडियो चला रहे हैं, सोच रहे हैं एक वीडियो 15 बार, ओ ऐड आ गया, ओ ऐड आ गया, ओ ऐड आ गया। और यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, अरे नहीं भाई नहीं पापा, समझो नहीं आएगा पैसा। पैसा है ही नहीं। हाँ, बट तो भाई यही मेरे है। को लाइक रस्टी के पॉडकास्ट से मेरे को पता चला एक बात हम्म कि 4,000 वॉचर्स बढ़ाना है ना हम्म जल्दी से जल्दी, वही हम्म लाइव स्ट्रीम करो। लाइव स्ट्रीम करो लाइव स्ट्रीम बेसिकली। से लाइव वॉचर्स स्ट्रीम ही है, ज्यादा जल्दी बढ़ता है। बहुत जल्दी हाँ बढ़ता है। ज्यादा जल्दी बढ़ता है। आई थिंक दैट वाज इट फॉर द यूट्यूब्स ऑल दिस सिनेरियो, जो भी डिसलाइक बटन की बातें हुई हैं। आई थिंक फॉर दिस पॉडकास्ट दिस वाज इट, पार्ट 1 था ये। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम दूसरा पार्ट भी सुनोगे, जो मेटावर्स पे हम बात करने वाले हैं आगे। तो फॉर दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ फाइनल नोट दैट कि तुम्हें पता चल जाएगा भाई जो भी हो रहा है, जो भी डिसलाइक बटन की चीजें हो रही हैं, जो भी हमने बात करी, तुम ऑडियंस हो बेसिकली, तुम्हें पता चल जाएगा। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस एपिसोड। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो यस, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक तो कर नहीं सकते। डिसलाइक कर ही नहीं सकते। कमेंट अरे नहीं, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें हम तीनों के पर्सपेक्टिव्स कैसे लगे। एंड तुम्हारा भी अगर कुछ बोलने का है तो यू कैन इधर कमेंट, हम तीनों देखेंगे, या फिर तुम हमारे इंस्टा पे भी आ सकते हो। हम तीनों के इंस्टा डिस्क्रिप्शन में गालियां होंगे देने। ही, ठीक है। एंड यू कैन चेक आउट बोथ ऑफ दीज बॉयज कंटेंट, क्या करते हैं ये लोग, तो तुम्हें उससे भी एक आइडिया पड़ जाएगा। साहिल वीडियो बनाना जल्दी से स्टार्ट कर दे। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं ओके, करते। सो कुछ नहीं करते, पता नहीं 4 महीने से कुछ तो आ रहा है, कुछ नहीं करते हम। okay, so this was it. This is Animesh, Sahil, Parry signing off, wishing you a very great day साइनिंग ahead, ऑफ। shining off. हैप्पी दिवाली। Have a peace, have a wonderful day, have a peaceful day. मैरी Peace out. क्रिसमस। Merry Christmas. थैंक यू भाई, थैंक यू, तुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कर अरे कोई उसमें क्या, नहीं। बाय बाय। बाय। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और पॉडकास्ट में। एक और पॉडकास्ट तो नहीं, बट इसी पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट में विद साहिल एंड पैरी। और अगर तुमने पिछली पॉडकास्ट सुनी है तो रियली अप्रिशिएट दैट, आई लव यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट कि तुमने पूरी पॉडकास्ट पे एकदम ट्यून इन रहे। एंड फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर दिस पार्ट हम बात करने वाले हैं फेसबुक की। पिछले में हमने बात करी थी यूट्यूब की, एंड जो मेटा भी बोल चीजें कर है वो यस मेटा। यस यस। फेसबुक नहीं है, मेटा है वो। तो पुराने वही पाप नहीं रहे, अब पुराने पाप सारे धुल चुके हैं।
भाई हमने तो प्ले स्टोर पे जाके देखा, भाई मेटा कर दिया क्या इसने? नहीं, एप्लीकेशन तो वही है। हाँ, ओके, सो मुझे भी सही वो में पहली बेसिकली बार वैसा ही कंपनी लगा का था। नाम फेसबुक चेंज हुआ है। हाँ, पेरेंट हाँ, कंपनी। पेरेंट कंपनी। सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, जो भी तुम लोग सुन रहे हो, इस पॉडकास्ट में हम वही बात करने वाले हैं मेटावर्स की, कि क्या है भाई ये। अपने विचार व्यक्त करेंगे, और स्टार्ट करते हैं विथ सेटिंग द टोन। कि साहिल, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है तेरे मेटावर्स से? कैसे पता चला, क्या था? तो जब मैंने मेटा का सुना, मैंने मतलब फेसबुक नाम चेंज कर, बोला क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट हाँ। देन उसके बाद मैंने देखा कि एज अ फेसबुक, अपनी फेसबुक जो इंग फेसबुक कॉर्पोरेशन है जो पूरा, हम्म। वो अपना नाम चेंज करे, ऐप का नाम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा हम्म। ठीक। तो अब फेसबुक विल बी कॉल्ड एज, अगर तुम अभी फेसबुक में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू मेटा, नॉट फेसबुक। हम्म। एंड जब मैंने ये पढ़ा, आई वाज लाइक क्या फेसबुक अपने पुराने पाप धो रहा है। वाज लाइक फेसबुक फेसबुक नाम सुन के एक ना गंदी इमेज दिमाग में आती है। ये एक कोर्ट रूम आ बहुत जाते हैं घटिया। भाई हमारे तो। हाँ, तो मेरे को लगा कि आप फेसबुक अपने नाम को चेंज करके अपने सारे जो पास्ट में उसने जो कांड किए हैं उसको हटा रहा है। बट देन आई लाइक इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट फेसबुक इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन लाइक द फ्यूचर। क्रेजी फ्यूचर। तो काफी, मैंने जब देखा मेटावर्स क्या है, तुम क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर, माइंड फक हो गया मेरा। तो आज उसी बारे में बात और करने वाले हैं। पैरी भाई, तुम्हें कहाँ से पता चला कि जकरबर्ग भैया ये सब कर रहे हैं? कैसे, क्या मेरे फर्स्ट को कल इंप्रेशन? पता चला। मेरे ओके। को कल पता चला। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट। हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं था कि मेटावर्स होने वाला है कुछ हाँ, ऐसा। बट वही। जब तूने बोला कि ये वीडियोस वगैरह देख ले, हम्म। मैंने देखा। बोलो तो। पैरी तो एकदम रियली हो गया भाई, पॉडकास्ट का नाम रियल है, एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट पैरी। सही है, मतलब हाँ यार। इतना भी सच नहीं बताना, इंडिया में इतना सच एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, तो भाई बट हाँ, मतलब पहले तो ऐसा होने वाला है ये सुन के तो ऑब्वियसली शॉक लगा कि हो भाई चुका है। अगर, हाँ मतलब अभी तो शुरुआत हो गई है इसकी। शुरुआत हो चुकी है भाई, तुम हाँ, लोग शुरुआत हो देख लो ना। चुकी है। अपन कहाँ थे? अपन वो फोल्डिंग वाले फोन पे थे पहले, फिर हम स्मार्टफोन पे आ हाँ, गए, फिर अब हम सब कर रहे हैं चीजें। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है। जकरबर्ग भैया ने बता दिया है कि बट हम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कब होगा, बट हम बोल सकते हैं सवाल ये कि क्या होगा, क्योंकि कब का तो हमें सवाल आंसर मिल चुका है। सवाल एक और है कि कैसे होगा। इंडिया में, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो एग्जैक्टली। ये है। जहाँ पे ओटीटी पे और तुम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो भाई तुम हम्म जकरबर्ग भैया को इंडिया में आने से कैसे रोकोगे मेटावर्स में? नहीं नहीं, और एक हाँ, सबसे और बड़ी अगर प्रॉब्लम पूरी है कि दुनिया उसे टेस्ला एक्सेप्ट जैसी कर रही है, गाड़ी हम्म। टेस्ला जैसी पूरी, गाड़ी को इंडिया में लाने के लिए इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो तो पूरा एक हाँ। यूनिवर्स है। मैं पता उसको है, सेटअप। हाँ, हाई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है मुझे, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, क्योंकि अपने अपने इधर थोड़ा दिक्कत होता है इन सब चीजों में। और मैं कहूँ तो आना भी नहीं चाहिए। ओके, दैट इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। पैरी, चल तू बता आना दे। भी नहीं तू चाहिए हल्का सा इस बारे में आगे बात करेंगे, बट तू बता दे कि क्यों नहीं आना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन दे दे ऑडियंस को, एसेंस दे दे कि क्यों तू क्योंकि बोल रहा है कि नहीं आना दे चाहिए। जितना मैंने देखा है, मतलब जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मल्टीवर्स के बारे में, वो हाँ, ऐसा, मल्टी नहीं, मेटा, सॉरी, मेटा, हाँ राइट। मेटावर्स। मल्टी, स्पाइडरमैन का ट्रेलर देख के आया यार, अंडरस्टैंडेबल। स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखा मैंने। भाई इनविजिबल स्पाइडरमैन ने दिमाग स्पाइडरमैन चोद दिख रहे हैं दिया। भाई हमें। मेटावर्स का जितना मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, उससे ये पता चला है कि वो एक गेम टाइप होने वाला है, जहाँ पे तुम वर्चुअली लोगों से मिलोगे, वर्चुअली सारे तुम्हारे तुम्हारे काम, साईफाई हाँ गेम्स जो है, मूवीज हैं, रेडी प्लेयर हाँ, वन जो है भाई, सब एक साथ आ चुका है। सब ऐसे एक वर्चुअल रियलिटी होगी जहाँ पे तुम हम्म। खुद दूसरे लोगों से मिलोगे वर्चुअली। लाइक हम्म। तुम्हारी खुद की कुछ पर्सनालिटी नहीं होगी, तुम बनाओगे, मॉडिफाइड वर्जन हाँ। बनाओगे खुद का, और लोगों को दिखाओगे कि तुम ऐसे हो। रियलिटी से अब तुम रियलिटी में हाँ, इधर थे, मेटावर्स के आने के बाद तुम इधर जाते हो, ये हाँ तो रियलिटी तुम्हारी इधर ही है। वही। और पबजी एक गेम की वजह से हमको पता चला कि लोग रियलिटी से कितना दूर भाग गए। अब ऐसा मेटावर्स आएगा तो रियलिटी से दूर भाग छोड़ ही देंगे रियलिटी को लोग। आई थिंक कि ऐसा तो बहुत सारे, अब ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊंगा, बट थोड़ा देख, अब बहुत सारे लोग जो पॉर्न एडिक्ट्स रहते हैं,
हाँ वो पॉर्न देखते हैं और वो लाइक वो जब उन्हें पता चलता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब हम्म फेक है, बट हम्म रियलिटी में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, वो देख के उनको इतना असर पड़ जाता है कि लाइक वो हाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइट तो जब मेटावर्स लाइक वो ऐसा एक वर्ल्ड ही आ जाएगा तुम्हारे सामने और तुमको जब रियलिटी हम्म होगी ही नहीं, मुझे लगता है लाइक तुम 24 राइट घंटे एक स्क्रीन के सामने बैठोगे, कुछ करोगे भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग पे कुछ हेलमेट लगा रहेगा और तुम सिर्फ सोचोगे और वो ही होगा। आई थिंक मेटावर्स के टाइम पे ये भी जाने वाला है, हाँ क्योंकि ये एक लाइक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे हर एक चीज तुम्हारी कर रही है। ये कैलकुलेटर है, हम्म कैमरा है, बैंकिंग इससे हो रही है, शॉपिंग इससे हो रही है, तुम कॉल कर रहे हो, शूट कर रहे हो, वीडियोस वही बना रहे हो, एडिट कर रहे हो। बट उस टाइम पे ना ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल, अब जो लोग ये स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन्स, जो तुम लोग देख नहीं हम्म पा रहे हो यूट्यूब पे, तो आई वुड लाइक टू से दैट कि धीरे धीरे हम जब लिखते थे, लाइक वी आर राइटिंग ऑन पेन एंड पेपर, वो पेंडेमिक की वजह से भी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी चेंज हो रहा है। अब तुम धीरे धीरे कीबोर्ड पे आ गए हो, ठीक है। हम्म नाउ मेटावर्स में तुम सिर्फ यहां से करोगे। इट इज फेसबुक एक चीज पे काम कर रहा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज नेम, आई थिंक मैंने लिखी थी वहीं पे, तो आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड EMG, समथिंग लाइक दैट, जो इलेक्ट्रॉनिकल वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं अपने दिमाग से जो निकलती हैं, उसकी हेल्प से तुम सोच रहे हो कि मेरा हाथ हिलेगा मेटावर्स में, मैं स्टीफन हॉकिंग्स की तरह बैठ के सारी चीजें कर सकता हूँ। सो बेसिकली दैट इज द हाँ थिंग। तो हाँ वही एक तरह से, एक तो इंसान ये प्रजाति ही लेजी है, ऊपर से तुमको और लेजी कर देंगे ये लोग। बट इंसान और रहने एक्चुअली का अगर इंसान रहने का मतलब ही हट जाएगा ना यार। मैं तो मतलब ही 100 हट बात की ये जाएगा। बात बोल रहा हूँ कि इंसानियत वही क्या होती है वही हट जाएगा चीज। बट हाँ तुम एक और चीज देखोगे तो अगर इंस्टाग्राम पे अभी हम जो है, यू आर हाँ नॉट योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, तुम फेक कर रहे हो वही चीजें ऑफ करके। और मेटावर्स तो तुम्हें वो एक बना ही पावर रहा है देगा, पूरा। पावर देगा कि तुम्हें यू कैन क्रिएट हम्म योर ओन वर्ल्ड, सो विच विल बी लाइक मच मोर हार्मफुल, कॉज रियल लाइफ में ऐसा कुछ होगा नहीं। अब अगर मुझे आज स्टारबक्स की 350 की कॉफी पीनी है तो उसके लिए मुझे 350 कमाने पड़ेंगे। अब हम्म मेटावर्स में मैं वो पी लेता हूँ, बट देन वो मुझे अगर एक टाइम पे अगर रियल लाइफ में करना है, सो हम्म आई फाइंड इट वेरी टफ एंड दैट विल रिजल्ट इनटू वेरी डार्क एंड वेरी ऑड जॉब्स, लाइक हम्म क्राइम्स भी कोई कर सकता है टू अचीव दैट शिट। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ बोल सकते हैं ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है कि जरूरत नहीं है और हाँ जरूरत है, क्योंकि देख, दिस पॉडकास्ट इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, हम थ्री थिंग्स, हम क्या सोच रहे हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। हम्म देन फर्दर विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ इट, एंड एंड में हम थोड़े नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। तो अभी तक तो ये बात चल रही है जो हम अपनी तरफ से जो सोचा है हमने, जो कॉम्प्रीहेंड किया है वो बता रहे हैं, एंड देन फर्दर विल बी मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। अच्छी हैं, पॉजिटिव चीजें काफी हैं इसमें भी। तो हाँ बेसिकली टू सम अप द कॉन्सेप्ट यही है कि तुम्हारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये यूनिवर्स है। क्योंकि हम्म आई थिंक जब मैंने देख मेटा जो नाम चेंज हुआ ना, उसके 2 हफ्ते बाद शायद ये डेमो दिया है जकरबर्ग भैया ने, है ना। सडनली नहीं दिया है, नाम चेंज होने के 2 वीक बाद आया था ये वीडियो। तो मैं, पता है, उस वीडियो को पूरा देखा मैंने, एंड द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग जो मुझे लगी, थोड़ी सी क्रीपी भी लगी, जकरबर्ग एक सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, ही इज प्रमोटिंग द फ्यूचर रियलिटी, हम्म जो वो चेंज कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी जो भी चीजों से है। तो सबसे स्केरियस्ट मुझे यही चीज लगी कि भाई ना ये कोई अपडेट बता रहा है फेसबुक का, ना ये प्लेटफॉर्म बता रहा है नया, ये एक यूनिवर्स और बता रहा है खुद भाई। हाँ और खुद नहीं रहेगा वो उसमें। खुद बेचेगा, वो खुद बना के खुद बेचेगा, तो उसका मतलब हाँ अगर हम अपने दिमाग से वो चीज कंट्रोल कर सकते हैं, पॉसिबल है कि जकरबर्ग भी हमारा दिमाग शायद कंट्रोल कर सकते भाई, माइंड ब्लोइंग थिंग। क्रीपी होती जा और रही है। ये चीज बहुत क्रीपी होती जा रही है। ओके भाई ओके। रोक दो, मार दो भाई। नहीं देख, सबसे जगरबग सबसे को मार दो स्केरियस्ट यार। चीज, ये चीज तो स्केरी थी मेरे लिए, बट उससे भी स्केरी ये था कि जकरबर्ग रियल लाइफ से अच्छा दिख रहा था मेटावर्स में। भाई शायद इसीलिए बना रहा हो। नहीं, बट उसने ऐसा बोला कि जो ये कार्टून्स दिख रहे हैं ना तुम्हें डेमो में, कार्टून्स नहीं होने वाले एग्जैक्टली। तुम हाँ इतना डिटेल होगा कि तुम अपने बाल का एक एक पोर देख सकते हो, फॉलिकल देख सकते हो, स्किन के पोर्स देख सकते हो, इतना डिटेल्ड में होगा ये चीज। तो हम्म भाई साहिल भाई,
क्या सोचते हो भाई, क्या चल रहा है ये? अच्छा वो एक, जमाना दूर नहीं जब हाँ बच्चे भी डाउनलोड होंगे। भाई, हाँ राइट। बच्चे डाउनलोड होने वाले हैं भाई। क्या यूज करने वाले हो तुम? अगर मान लो 10 साल बाद ऐसा आ गया, अब 10 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 साल बाद अगर आ गया, यूज करोगे? ऑफ कोर्स करोगे? यूज मैं देख, यूज करने में कोई बात देख, हम पबजी को गालियां भी डालते हैं पर खेलते भी है। हम्म, देख यूज करूंगा बट आई मेक श्योर कि मैं उससे एडिक्टेड ना हूं। मतलब मेरी रियलिटी से दूर नहीं जा रहा है तू? हाँ, हाँ कोई भी चीज लिमिट में अच्छी होती है। अगर ये लोग मेटावर्स निकालने वाले हैं तो वो लोग ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोग इसे, ऑब्वियसली उनका, वो लोग नहीं ध्यान में रखेंगे, बट लिमिट में यूज करे तो अच्छी बात है। लिमिट से नहीं, याद आया कि हाँ, ऐसे लिमिट प्लेटफॉर्म में पे। यूज करे, जस्ट सेकंड, अगर लिमिट में यूज करे तो हमारे लिए अच्छी बात है, बट हाँ, उनके अगर लिए नहीं अच्छी बात है, उनके पता है। लिए अगर वो हम अंधाधुन यूज कर रहे हैं एंड तो उनसे उनके लिए दो तरह के प्लस पॉइंट होगा। एक, उनको कंपटीशन नहीं मिलेगा, सेकेंडली उनका प्रोडक्ट ज्यादा। वही वही। आई थिंक कि और लिमिट की जो ये बात आ रही है ना, तो यहाँ पे ऐसे यूनिवर्स में प्लेटफॉर्म, बार बार ऐसा मेरे मुंह से निकल रहा है बट मैं यूनिवर्स ही बोलूंगा, प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। तो हाँ, वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हाँ, इस जगह पे मॉडरेशन की बहुत दिक्कत आने वाली, तुम्हें लगता है? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से तुम लोगों ने ये बात सुनी कि यहाँ पे होराइजन मार्केट स्पेस नाम की एक चीज होगी, सुनी तुम हाँ लोगों हाँ ने? हाँ, जहाँ पे तुम खुद हाँ की हाँ, इकोनॉमी बना रियल रहे हैं ये पैसे, लोग, हाँ खुद की इकोनॉमी इकोनॉमी बना बना रहे रहे हैं। हैं। और तुम खुद एक सॉरी लाइक वर्चुअल प्रोग्राम क्रिएट करके उसको वर्चुअली सेल कर सकते हो। तुम सोफे हाँ, का डिजाइन बना सकते हो, और अगर मुझे वो चाहिए मेरे वो घर में तो मैं तुमसे कोड खरीदूंगा। करके डिजाइन बना सकते हो और वो कोड तुम्हें बेचेगा रियल हाँ, पैसे से। तो तुम्हें नहीं पता लगता है। कि ये चीज को मॉडरेट करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं शर्ट पे जो डिजाइन है वो ऑफेंडिंग नहीं है, या फिर जो मैं टैटू बनवा रहा हूँ मेटावर्स में वो ऑफेंडिंग नहीं है? तो ये चीज तुम्हें लगता है मॉडरेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है इनको, क्योंकि हर चीज इतनी वास्ट है। हाँ, अरे वर्ल्ड एक बनाना कोई, हम्म। कौन है वो भाई, किसने वर्ल्ड बनाने की सोची है? भगवान के बाद बट वही होगा। बट हाँ। इफ यू सी द ओनली थिंग जो वहां पे रियल होगी वो होगा असली पैसा। मतलब हम्म। मैं एक सोफा का डिजाइन बना रहा हूँ अपने वर्चुअल घर में रखने के लिए, जो मैं वर्चुअली खरीद रहा हूँ थ्रू हम्म। रियल मनी। तो अगर मैं वर्चुअली अगर टैटू बना रहा हूँ, जो अगर मैं खुद टैटू आर्टिस्ट हूँ, मुझे कुछ ऑफेंसिव बनाना है, मुझे एन वर्ड लिखना है, मैं लिख सकता हूँ खुद की मदद और से। तेरी आइडेंटिटी भी हिडन रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि तू कुछ भी बन एग्जैक्टली। सकता है उसमें। दैट इज द मोस्ट और स्केरियस्ट पार्ट, क्योंकि तुम्हारे बगल हाँ, में क्रिमिनल भी बैठा होगा वर्चुअल वर्ल्ड में, तुम्हें नहीं वही। पता कौन है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी का सबसे बड़ा रिस्क है, तुम्हारी प्राइवेसी का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि भाई जकरबर्ग भैया का, भैया क्यों बोल रहा हूँ, फेसबुक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखो ना तुम, बिल्कुल हम्म। डामाडोल है। तो ऐसी अगर चीज वो कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा पीआर लगेगा खुद की इमेज सुधारने में और ये वर्ल्ड बनाने में। तो आई थिंक कि और यही सबसे बड़े ऑब्वियसली चैलेंजेस होंगे। परमिशन भी मिलनी चाहिए उसको। हाँ, परमिशन भाई कौन किससे लेगा वो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सरकार किससे? सरकार शायद खुद की नहीं, सर। नहीं, बट एक बात बताओ, इन अ कंट्री लाइक इंडिया तुम्हें लगता है कि इजीली आ जाएगा, या फिर क्या तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अगर वो इंडिया में आ जाए? बेसिकली ये बताओ ऑडियंस को। एक बच्चे ने 10,000 सी माँ बाप से खरीद के अब खुद के लिए सोफा ले लिया, ये न्यूज में रहेगा। जो पबजी में पक्का होता था, 100। हाँ, जो पबजी पबजी में में होता है होता वही। था। हाँ राइट। एक बट बच्चे की अगर खेलते इंडिया खेलते में एक्सीडेंट में मौत हो गई, हो गया। इसको अगर हम छोड़े और अगर हम इंडिया में लॉन्ग रन का देखें ना, तो इंडिया में लोग इसको प्रोडक्टिविटी के लिए कम यूज करेंगे और क्राइम्स करने के लिए ज्यादा यूज करेंगे। बहुत अरे अगर ज्यादा, इफ हाँ, हो सकता प्रोडक्टिविटी है। क्या है उसमें? प्रोबेबिलिटी है। प्रोडक्टिविटी अगर क्या है उसमें? यार प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट। सिर्फ जो थोड़ा हो सकता क्रिएटर्स है, फॉर रहेंगे, जो एग्जाम्पल अगर बेचते हम्म। रहेंगे कोड्स वगैरह, उनके लिए है। बट नहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड वोड नहीं बनाता, मैं उधर कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हाँ। एज खेलने के लिए जा रहा हूँ बस। हम्म। और देख, पबजी में भी प्रोडक्टिविटी मुझे नहीं लगता हो, मतलब देख, एक तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ता है पबजी खेलने से, हम्म। गेम्स खेलने नहीं, से आई टेल यू बेसिकली। वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग, अगर हम्म। अभी अभी हम पॉडकास्ट प्रोडक्टिविटी, अगर मैं एक चीज उसका एग्जांपल दूं तुझे, सो इट कैन बी कि अगर अभी हम पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं लैपटॉप ऑन करके, लाइट ऑन करके, बट हम्म। अगर उस टाइम पे अगर हमें उसके डिवाइस के साथ रिकॉर्ड करनी है, तो हम तीनों पहन लेंगे, हम एक अच्छा बैकग्राउंड या कुछ क्रिएट करके
देन हम शूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत फायदा है उसका, बट ज्यादा नुकसान लग रहा है मेरे को। लोग देखने भी वैसे ही आएंगे ना, हम्म, वो भी तो तो है, आई लोग थिंक लाइव कि देखेंगे तुम्हें। हाँ, जो प्रोडक्टिविटी का जो तुम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया, आई थिंक कि प्रोडक्टिविटी के मामले में थोड़ा हो सकता है आसानी हो जाए, क्योंकि मीटिंग्स तुम्हारी उधर पे बैठ के घर बैठे हो रही हैं। पेंडेमिक की वजह से मीटिंग जूम पे आ गई है, हम पॉडकास्ट जूम पे कर रहे हैं, बट वहां पे लिटरली तुम बैठ के ही सब कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी के मामले में हो सकता है बढ़ जाए। ट्रांसपोर्टेशन टेलीपोर्टेशन में बदल जाएगा भाई। तुम यहाँ से अपने ऑफिस में जा रहे थे, तुम सीधा लगाए गॉगल्स, टेलीपोर्ट हो गए अपने ऑफिस में। प्रोडक्टिविटी के लिए वो एक अच्छी चीज है। दूसरी तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो मैं पेन पे लिखता था चीजें, फिर वो लैपटॉप पे ही, अब मैं सीधा दिमाग से ही कर रहा हूँ। लेजी तो बना ही रही है भाई वो चीज, लेजी इनफैक्ट बहुत ज्यादा बना रही है, बट इनपुट हमारा फास्टर हो जाएगा, राइट? अगर मुझे कीबोर्ड पे लिखना है पैरीपुल, मैं लिख रहा हूँ PARRY, बट वहां पे दिमाग में यहाँ पे थॉट लाना है पैरीपुल, लिख दिया है। और जिन लोगों का दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी सोचते हैं, उनकी तो भाई, उनकी तो लग जाएंगी लंका भाई। मैं वो आदमी हूँ जैसे मैं कुछ तुम भी लोग को सोचता हूँ। अगर यहाँ पे एक और सुनो एक हाँ स्केरियस और एक creepy चीज के बारे में अभी हाँ मेरे दिमाग में है। ओके, तुम दोनों ने एलन मस्क की न्यूरालिंक चिप के बारे में सुना ही होगा ऑब्वियसली। ये मैंने वीडियो हाँ ही पता बनाया है, था, पता है। राइट? हाँ हाँ अगर न्यूरालिंक और मेटावर्स, लाइक तुम दिमाग से सोच के तुम चीज लिख सकते हो, और न्यूरालिंक जो तुम्हारे दिमाग को 50-100 टाइम्स मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, अगर उन दोनों का फ्यूजन हो जाए तो वी आर प्रेडिक्टिंग इन दिस पॉडकास्ट कि हो सकता है फ्यूचर में एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग कोलैब करें बिजनेस में। कोलैब आज प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम भाई। तीन लौंडे यहाँ पे बैठ बट के जिनको कुछ नहीं पता है, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पर देखो, अगर न्यूरालिंक और मेटावर्स के प्रोडक्ट्स का अगर फ्यूजन हो जाता है तो हाँ दुनिया एक तरीके से बहुत ज्यादा इवॉल्व कर जाएगी, और एक तरीके से चीजें काफी ज्यादा क्रीपी बन जाएंगी। राइट हाँ, राइट। और न्यूरालिंक तो एक चिप है ना, तो उस वो पे तो भी हाँ। 110% तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। और जो तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल हो, हाँ वही, जो तुम्हारे वही वो चिप अंदर इंस्टॉल है, तो भाई तुम हो गए, तुम बन सोचने गए में एक यार, गुलाम किसी सोचने के। अधिक अपन बोलने में बोल सकते हैं, बट ये चीज पता है इलॉन मस्क के लिए भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी परमिशन लग रही है उसको। वो ये चीज अभी अभी तक पिक्स पे ही कर रहा है। तो आई थिंक इंसान तक आने में उसको टाइम लगेगा, एंड होपफुली तब तक पूरा मेटावर्स सेट हो चुका है। ह्यूमन राइट्स वालों को जगाओ भेंडी। हो सकता है जब तक इलॉन मस्क ये बनाए ना, मेटावर्स पूरा सेट हो जाएगा, एंड देन वो पिच इन करेगा अपना प्रोडक्ट। बट आई गेस लाइक वो ह्यूमन पे ट्राई कर रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने एक दो जगह वो सुना था कि वो शायद ह्यूमन पे लाइक इनविटेशन दे चुका है, अगर वो तुम्हें खुद वॉलेंटरी, वॉलंटरी हाँ। ट्राई करना हो। तो अगर किसी को इंस्टॉल करवानी होगी, अगर पूरा कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है, कंप्लीट लॉन्च, तो भी वॉलंटरी होगा। अगर मैं आई वांट कि मेरे दिमाग में न्यूरालिंक हो, तो अब वो तो मेरी मर्जी होगी ना, कोई हाँ, आके ज्यूरिसडिक्शन बहुत सारे हैं भाई, लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, बहुत दिक्कत भी आ रही है उसको। बट वो कह रहा है कि वो सिर्फ टेस्ला तक सीमित रहेगा ना, मतलब तू सब हाँ थोड़ी कंट्रोल कर पाएगा। तू न्यूरालिंक से सिर्फ टेस्ला की गाड़ी खोल सकता है खुद की, तू थोड़ी नहीं, बट मारुति उसने 800 खोलेगा। नहीं उसने नहीं नहीं न्यूरालिंक बेसिकली उसने यही प्रोडक्ट बनाया है कि तुम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साहिल तू बता हाँ, न्यूरालिंक का क्या उसने है? इसके लिए बनाया है न्यूरालिंक कि तुम किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सको, अगर उस हाँ वो कंपैटिबिलिटी है उसमें। हाँ, हाँ कंपैटिबिलिटी वही इज द क्वेश्चन। वही वही। और हाँ सेकेंडली वो इसलिए बना रहा है ताकि तुम लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा बोल रहा है कि एआई विल टेक ओवर ह्यूमन, जस्ट टू सेव ह्यूमन फ्रॉम एआई, दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू मेक न्यूरालिंक सो दैट यू कैन you can always be the superior one. The computers won't replace you. मतलब चूतिया काट रहा है अपना जो सबसे बड़ा डर है मेटावर्स के लिए, जो सबसे बड़ा डर है ना मेटावर्स के लिए, वो यही है हाँ कि सिंगुलैरिटी एक टर्म होता है, तुम्हें पता है, मुझे भी इसमें ज्यादा नहीं पता इस बारे में, बट सिंगुलैरिटी इज दैट टर्म की जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस। और डू यू थिंक कि मेटावर्स, तो अपन ने बात करी मेटावर्स के इम्पैक्ट्स, अपन को सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने है, तुम रोज करते हो वो चीज, बताओ क्या करते हो अब? क्या करते मैं बताऊं? क्या कर- बता भाई। तुम फिल्टर्स यूज करते हो, राइट? हाँ मैं भी करता हूँ, ठीक है। अभी से हाँ अपन फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, एंड इट इज सेड दैट कि इंस्टाग्राम और जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया, तुम सोशल डिलेमा देख लेना, ज्यादा नहीं बोलूंगा,
तो देखिए बेसिकली फिल्टर्स यही तो कर रहे हैं। तुम फिल्टर में अच्छे दिख रहे हो, फिर जब तुम खुद को अपने मिरर में देखते हो तुम्हें लगता है ना कि भाई फिल्टर से तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, राइट? दिस इज द थॉट। तो नहीं, मुझे तो नहीं बेसिकली आता कभी। तुम मैं बहुत सुखी हो, तुम बहुत सुखी हो, ठीक है। फिल्टर गंदा है भाई। हाँ मेरी भाई शक्ल नहीं। एक तो थॉट, वो फिल्टर चीज हमें गंदा पता है। है, हाँ। हमें अल्टीमेटली हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें उसका एल्गोरिथम हम्म, पता है, हमें पता है वो चीजें कैसे काम करती है, तो हम्म। हाँ, हमारे दिमाग में वो थॉट नहीं आता, बट कॉमन ऑडियंस, कॉमन कॉमन पीपल के ऑडियंस लोग, आता है, ऑब्वियसली, राइट राइट, आता है ना। तो उनमें आता है। क्योंकि फिल्टर्स हाँ, तुम्हारे साथ जॉ लाइन वगैरह दिखा देता है तुमको मेरे कहने का यही मतलब थोड़ा है सा। कि हाँ, हाँ। अभी से फिल्टर्स इज टेकिंग अस अ वेरी क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, रियलिटी से दूर लेके जा रहे हैं फिल्टर्स, राइट? लोगों को हम्म। पता है बॉडी डिस्मॉर्फिया इसलिए होता है क्योंकि वो फिल्टर में अच्छे दिखते हैं बट वो रियल लाइफ में अच्छे नहीं एग्जैक्टली, दिखते हैं। एग्जैक्टली हम्म। मेरे कॉलेज में मैं एक दो जनों को जानता हूँ जिनको अपनी बॉडी इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी लगती है, उसकी वजह से उन्हें अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा है और उन्हें सोशल एंजाइटी भी हो रही दैट इज द होल है, दे आर प्रॉब्लम। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देमसेल्फ। सोच वो ले तो है। अगर मेटावर्स आ गया तो क्या होगा ये चीज। ये तो भाई एक दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कम होगी या हाँ ज्यादा होगी। हाँ। और फिर ज्यादा ही हो सकती है, ये मेजोरिटी कम ऑफ टाइम ज्यादा कम ही पैरी हो सकती कम पैरी आई कम थिंक क्यों कम कम होना होगी? मुश्किल है। नहीं, कम इसलिए होगी क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी देख, मेटावर्स होगा तो लोग मिलना कम कर देंगे सोशलाइजिंग पर्सनली, बहुत कम होगी। सोशलाइजिंग बहुत कम होगी, और मेटावर्स के थ्रू ही लोग मिलेंगे, तो हम्म वो अपनी पर्सनालिटी जो मन चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं वो। बट हम्म। पैरी तो ये तो बट बात नहीं एट द समझता एंड, है। एट द एंड हाँ, ये वो जब गॉगल्स तुमने रियलिटी में निकाले, जाएंगे। एट द एंड ये गॉगल्स हाँ। जब तुम निकालोगे रात को हम्म। सोते समय तुम खुद को देखोगे ना क्या हूं मैं, हाँ, और जब ये और लगाया तो क्या वही। हूं मैं। और गिर जाएगा मेटावर्स, लाइक लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह करके रख दे। बात सही है। लाइक लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा। बट दिस थिंग, जब अब हम मूव ऑन करते हैं डार्क साइड, तो मतलब थोड़ी कर ली अपन ने। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हो सकता है आगे जाके अपन बोले, बट अब अगर अपन बात कर लें पॉजिटिव्स की, तो डिसेबल्ड लोगों के लिए काफी सही है, राइट? जैसे न्यूरालिंक हाँ। हो सकता है। अगर तुम यहाँ पे बैठे हो व्हील चेयर पे, तुम मेटावर्स में उड़ पाओगे। तो एक ही चीज है कि थोड़ा एक हो सकता है डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने के लिए भी आसानी हो। जो लिख नहीं पाते हैं, उनका हाथ काम नहीं करता अच्छे से, वो अच्छे से लिख पा रहे हैं। जो चल नहीं पा रहे हैं वो हो सकता है लोगों से बात कर रहे हैं। तो दैट इज अ गुड पार्ट आई थिंक, जो गुड्स में अपन डाल सकते हैं इस चीज को, हम्म। है ना? वो और तो है। इसका एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम, लाइक, you cannot be present at multiple places, like it can help you हम्म to give your presence at हम्म। everywhere. मतलब मैं इधर बैठे बैठे तुम दोनों से मिल सकता हूँ गुजरात में। हाँ, ओके। हाँ, तो आई थिंक पॉजिटिव्स के बारे में बात करने से पहले एक लास्ट पॉइंट मेरे पास है डार्क साइड के लिए। एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरा इफेक्ट करेगा, जो क्रिएटिव नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेटावर्स में प्लम्बिंग नहीं होने वाली है, कारपेंट्री नहीं होने वाली है। तुम ऑड जॉब्स नहीं करोगे मेटावर्स में, तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में बहुत दिक्कत है उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, जो गैजेट्स के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स नहीं चला पाते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है, उनके लिए काफी दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि ऐसे जॉब हम्म, वालों के पास मेटावर्स भी नहीं होगा, वही वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेटावर्स एक एक्सेस तरह से, करने का तरीका हाँ, ही नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि कि ऑब्वियसली पर्टिकुलर महंगा तो क्लास के होगा लिए वो। हो। हाँ, हो सकता है महंगा नहीं, पर्टिकुलर क्लास के लिए हो एक मिनट, मेटावर्स। लोग फ्री में देंगे ना ये लोग। नहीं 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 नहीं, एक- सब्सिडरी प्राइसेस हैं। हाँ, तो लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब फैलेगा ये जहर, बट थोड़ा कम कम ऐसा भाई धीरे धीरे। डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ना, मुझे लगता है मेटावर्स से बाउंड्रीज बनने वाली है लोगों में, जो अपन मूवीज में नहीं, एकदम दीवार बनी हुई है। एक तरह के लोग बट इधर है यही और एक तरह के इधर है। हाँ। सबके पास आएगा, कम कम लोगों में नहीं फैलेगा। हमको भी लगा था फेसबुक इज लाइक वेरी टफ, यू शुड नो इंग्लिश अच्छे से, हम्म, तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या है फेसबुक के लिए। हाँ, बट वो आज टाइम टाइम के तरह होगा ना, लाइक जैसा लोगों के पास पैसा आएगा वैसे से अब देख, नेटफ्लिक्स भी अभी अब ये तो बोला है सब सब्सक्रिप्शन रहेगा इसका। सब्सिडरी प्राइसेस रहेंगे, छोटे छोटे हाँ हाँ, प्राइसेस की भाई अफोर्ड कर पाए लोग। वही। हम्म। हाँ, तो इंडिया में तो बहुत ही कम लगना पड़ेगा इन लोगों को। मैं बोल रहा हूँ ना, जो अपन मूवीज में नहीं देखते थे कि भाई एक तरह के लोग इधर हाँ, हैं, दीवार बन चुकी है भाई, उस तरफ के लोग बहुत अजीब हैं, अमीर हैं, जो भी बोल लो, तो हो सकता है हाँ, मेटावर्स को हाँ। क्रिएट कर दे, पॉसिबिलिटी है। इंडिया में अगर ये मेटावर्स आएगा ना,
तो इन लोगों को झुकना ही पड़ेगा, मतलब कुछ इंडिया के हिसाब से इनको हाँ मॉडिफिकेशन करना करना पड़ेगा ही बिकॉज पड़ेगा। बिकॉज तू बहुत सही चीज बोल रहा है एंड हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड कि इंडिया में कोई भी चीज आती है ना, कोई भी कंपनी आती है उसको इंडिया की मॉडिफाई तरह, करके ही हाँ, आती है। मैकडोनल्ड्स के पास हाँ मैक लाइक आलू टिक्की नहीं था, मैकडोनल्ड्स मैक आलू टिक्की नहीं बनाता था, इंडिया में अगर अमेजोन बनाया के पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, नहीं था, नहीं था, उसने उसको कैश ऑन बनाया। डिलीवरी लाना पड़ा। बनाया वही। नेटफ्लिक्स अमेजोन नहीं चल पा रहा था अब चलेगा, रिस्ट्रिक्शन आएंगे। शैम्पूज सैचेज में बिकने लग गए। नहीं नहीं, पता है ये बहुत एक सही बात, एक रिमार्केबल बात मीडिया है। झूठ बोलने लगते हैं। अच्छा ओके बट तो नहीं, ये एक हाँ, हमारा प्लस पॉइंट है कि कुछ भी आता है हमारे इधर हम्म, मॉडिफाई करके आता है, बिकॉज हमारी जो हमारे कंज्यूमर्स है वो पूरी अलग है। भाई इंडिया के पास एक उनका कंज्यूमर पावर है, बहुत बड़ा है, इंडिया वही पावर है उनके पास। वही पावर है, पॉपुलेशन और हमारी हम लोग की स्ट्रेंथ बन रहा है यहाँ आइडियोलॉजी भी पे। अलग है, हाँ, राइट, पॉपुलेशन यहाँ मेंटालिटी पे भी स्ट्रेंथ अलग है बन रहा हमारी। है। हाँ, तो राइट। इसलिए चेंज होके आता है इधर, जो भी आएगा वो। एंड ऑफ कोर्स देख, अपन ये देख सकते हैं कि ओटीटी में इन लोगों ने रेगुलेशन लगाए हैं, तो इसी बात से तुम इमेजिन कर सकते हो कि मेटावर्स आएगा तो ऑफ कोर्स मीटिंग होंगी भाई डैश डैश पार्टीज से, डैश डैश लीडर्स से, और फिर किया जाएगा हम्म भाई, क्योंकि जकरबर्ग को इंडिया में नहीं चलाने देंगे ये सभी लोग इतना फ्रीली, क्योंकि इंडिया के लोगों को पता है, जो अथॉरिटीज उनको पता है कि अगर इंडिया के लोगों को खुला छोड़ा एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन हटाए तो, समझ रहे हो। हम्म तो बट अगर यही है। तुम्हें एक चीज तुम्हारे दिमाग में आई हो कि नहीं आई हो, 2016 लास्ट यूएस इलेक्शन कब थे, बाइडेन से पहले ट्रम्प वाले? जब 16, भी थे, 17, जब भी थे, पता याद नहीं है 16 मुझे। 17। हाँ, बट अगर तुम लोग को याद हो, तब फेसबुक ने एक मेजर रोल प्ले किया था ट्रम्प को जिताने। एडवर्टाइजमेंट किए थे बहुत सारे ट्रम्प के बारे में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि ट्रम्प को वोट डालें, जहां तक मुझे लग रहा है यही था। अब अगर हाँ देख, अगर अब फेसबुक के थ्रू तो एक्चुअली कैंपेनिंग होती रहती है दोनों पार्टीज एंड की। साहिल, ठीक है। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एक और चीज ऐड करूंगा तेरे ही पॉइंट में, कि इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें फेसबुक को स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम कोई कैंपेनिंग नहीं चलाओगे, कोई एड नहीं चलाओगे, समझ रहे। जकरबर्ग भैया को बुलाया था कोर्ट में ये बताने के लिए, भाई ये करना है तुम्हें। और अगर अभी अभी अगर तुम देखो इलेक्शन के टाइम पे दोनों जो मेजर पार्टीज हैं हमारी, वो अपनी कैंपेनिंग चलाती, बट राइट, मेटावर्स से यू विल बी लाइक इन्फ्लुएंस हेवीली। बट अगर फ्रीडम ऑफ उस टाइम स्पीच पे अगर मिलेगी। दैट इज समथिंग डिफरेंट, लाइक वो तो हम हम्म ना के बराबर। मेटावर्स से मिल सकती मेटावर्स है लोगों को, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मिल सकती है लोगों को, तो ये लगता है शोकेस कर पाएंगे वो अपने थॉट्स जैसा ट्विटर पे कर पा रहे हैं, तो ये नहीं, मेटावर्स से ऑब्वियसली कर पाएंगे, हाँ, नहीं कर पाएंगे। अरे अगर तुम्हारी ये पूरी आइडेंटिटी हिडन रह रही है तो हम्म क्यों नहीं करेंगे? बट लाइक मैं समझा तब नहीं तो क्या और कहना खुल चाह के रहा हूँ। एक करेंगे, मैं सेकंड, तो बोल रहा हूँ। एक हाँ, सेकंड, यहाँ पे दंगे व्हाट आई एम मेरे ट्राइंग ऊपर। टू से, हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुझे लगता है कि जो लोग खुल के चीजें नहीं बोल पाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, हम्म तो उन लोगों को एक ऐसे शोकेसिंग, हाँ, हाँ, कुछ, हाँ मिलेगी, उधर तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मिलेगी, मिलेगी, है बट ना। नोबडी नोज यू एंड लाइक हम्म तुम चाहे वो बोल सकते हो। हम्म हाँ बट वहां पे एक थिन लाइन आ जाएगी कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, या हम्म एनी एनी सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, और मेटावर्स वो में, पता भी नहीं क्या चलेगा मेटावर्स किसी में को। तुम्हें लगता है गवर्नमेंट्स रहेंगी, गवर्नमेंट नहीं भाई, गवर्नमेंट्स रहेंगी, तुम्हें लगता है मेटावर्स विल अलाउ बट यहाँ पे मुझे पता है एक देख, और एट द एंड ऑफ द डे वो मेटावर्स, एक गेम रहने वाला है ना। नहीं यार मैं तो, पता है मैं बोलूंगा it- गेम से बढ़कर होने वाला है वो पूरा भाई, रियलिटी है तुम्हारी, हाँ, फ्यूचर बेच रहा है जकरबर्ग, तुम्हें फ्यूचर बेच रहा है बट तुम्हारा। तू अगर अनिमेश ये भी सोचे, इट कैन लाइक अगर उस पे अगर तू कुछ बोल रहा है बट तो ये शुरुआत तो एक आइडेंटिटी। गेम से ही होगी ना। हाँ, वो ऑफ बीच कोर्स, तो एक हाँ, गेम गेम से ही हम्म करेगा, बोल के हम्म गेम बेचेगा, और फिर बट भाई सी अगर अटक गए अनिमेश तुम। तू अगर अपनी एक डिफरेंट रियलिटी बना रहा है, तू अपने आप पे एक अलग से इंसान देख, अपना अवतार पूरा अलग बना रहा है, तो हम्म। मैं और सारे नहीं जानते कि ये अनिमेश है करके। तो हाँ, तू आगे हम्म राइट, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, बट हम दोनों अब तुझे ना रिपोर्ट कर सकते हैं अगर हम दोनों तुझे नहीं जानते। हम दोनों तुझे ट्रेस भी नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है तू कौन है।
हो सकता है फ्यूचर में ऐसा रेगुलेशन ले आए मेटावर्स में, जो मैंने बात करी, Exactly, मॉडरेशन आ जाए मॉडरेट करने के लिए। रेगुलेशंस लाइक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, और अगर उधर से भी हाँ बच जाते हैं तो या फिर गवर्नमेंट ट्रेस एक कर पाएगी तुम्हें कि नहीं, गवर्नमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी ट्रेस कर पाएगी, और अल्टीमेटली मुझे अपना नाम डिस्प्ले क्या करना है और मेरा एक्चुअल नाम क्या है, मुझे दोनों एंटर करने पड़ेंगे। इट इज एंड ऑल्सो वो र्यूमर्ड। हाँ, ये भी एक चीज र्यूमर है कि वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम हाँ अगर ट्रेस नहीं कर पा रहा मुझे कोई, तो मैं तो कुछ भी करके निकल लूंगा, एंड दैट्स राइट। वेरी लाइक बहुत ज्यादा डार्क चीज हो जाएगी वहां पर। एंड ऐसा शायद ऐसा र्यूमर भी आया है कि शायद बिटकॉइंस का यूज होने वाला है मेटावर्स में, बिटकॉइंस एज अ करेंसी, ऐसा र्यूमर्ड है। हो सकता है, हम्म, इजी यार भी होगा ना बिटकॉइन, वो। हाँ इंडिया में देख धीरे धीरे बिटकॉइन आ रहा है, मतलब कॉइन स्विच कुबेर जो भी चीजें हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, प्रमोट कर रही हाँ, हैं। बट स्टिल क्योंकि यार शेयर मार्केट के लोगों का ट्रस्ट स्कैम 1992 के बाद थोड़ा सा बढ़ा है, तो बिटकॉइन जैसी हाँ, करेंसी और ऐसा चीजों के लिए तो यार और थोड़ा एक टाइम वेब सीरीज लगेगा। निकालो। वेब सीरीज निकालो, बढ़ जाएगा। वेब सीरीज या मूवी, हाँ। भाई वेब सीरीज और मूवी इतना इम्पैक्ट करता है ना इंडिया पे। सिनेमा इज वेरी इम्पैक्टिंग, बोल सकते हैं। हाँ, बहुत इम्पैक्ट करता है, लाइक वो इन्फ्लुएंसर गेम में बहुत पहले से है। सालों से यार, सालों हाँ, से। सालों से वही। तो एवरीबॉडी इज एन इन्फ्लुएंसर अंटिल द रियल इन्फ्लुएंसर कम्स। हाँ, हम्म, तो तुम कुछ भी अगर तुम्हें इंडिया में करना है ना बूम, तो भाई निकाल दो उस पे, क्योंकि अवेयरनेस आती इंस्पिरेशनल है, पता स्टोरी है, दिखा दो। हो सकता है इस सिनेमा एज अ मीडियम से अवेयरनेस फैल जाए, और और फैलती भी अगर है। बिटकॉइन और अगर बिटकॉइन का यूज होगा से ना मेटावर्स में, हम्म। तो क्राइम रेट्स बढ़ने के चांसेस है। हाँ, ए साहिल, मुझे ये चीज नहीं पता, बिटकॉइन ट्रेसेबल है क्या? नहीं, इसलिए तो बोला मैं। नहीं है ना? इसलिए तो बिटकॉइन बोला, ट्रेसेबल, दैट्स द हाँ। पॉइंट। वही तो बोला। इसलिए अगर हम्म। इंडिया में बिटकॉइन का यूज बिटकॉइन हुआ तो इंडिया में भाई, बिटकॉइन के साथ कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है इसलिए बिकॉज हो रही मोस्ट है। ऑफ द मिनिस्टर हाँ, बोल रहे हैं कि वो ट्रेसेबल नहीं है, उससे टेररिस्ट फंडिंग हो रही और राइट 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 प्लस राइट राइट। प्लस डार्क वेब में तो सब ऐसे ही तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है। हाँ, राइट। बिटकॉइन से ही तो होते हैं। तुम हैक नहीं कर सकते ना, ट्रेस कर सकते हो। तो पैरी, एग्जैक्ट। साहिल, क्या तुम अपनी प्राइवेसी बेचने के लिए तैयार हो जकबर्ग भैया को मेटावर्स में? बेच चुके ऑलरेडी हम, और क्या बेचे, हम लोग बेच चुके हैं। अरे भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक खोल दिया भाई, तब से गई है हमारी प्राइवेसी। एक क्या ही बंदा पता। सारी चीजें ऑन कर रहा है, एक ही बंदा ये तीनों चीजें ऑन कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। इससे बड़ी और क्या बात हो मेरे सकती को है? लगा तो मैंने एक सेकंड के लिए मेरे को लगा तो हमारे मिनिस्टर्स की बात अरे, अरे भाई, राइट। तो बट अगर फॉर हम्म, एग्जांपल देख, अभी बीच में देख फ्रीक्वेंटली ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बंद हो रहे थे, देख एक 5-6 घंटे के लिए क्योंकि इंस्टाग्राम डाउन हाँ, था, क्योंकि एक ही फेसबुक बंदे के डाउन पास था। सारी चीजें हैं ना, तो इसलिए वो एक साथ सारे ही गए, हाँ, क्योंकि अलग अलग लोग ओन नहीं करते हैं। राइट, ओके अगर पैरी, हाँ। अगर मेटावर्स आ गया हम्म। और अगर ऐसा मेटावर्स 5-6 घंटे के लिए बंद हो गया, सर्वर उसका, भाई ये सोशल मीडिया बंद हो गया तो ये जो भाई तुमने लोग, बोला है ना, हाँ, सोशल मीडिया बंद अरे हुआ तो भाई, लोग पागल हो गए। हाँ, हाँ अगर मेटावर्स ऐसा बंद हुआ 5-6 घंटे, हाँ सुसाइड कर राइट। लेंगे लोग। ये आई थिंक इस पे तू साहिल हाँ साहिल, तुम क्या समझते हो? पैरी भैया ने जो एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि अगर मेटावर्स बंद हो गया ऐसे घंटों के लिए, तो क्या तुम अटके रह जाओगे मेटावर्स में, या हेडसेट निकाल लोगे? बट नहीं, वो देख, मेटावर्स अगर एक से बंद हो गया तो लाइक हम्म, उसके सर्वर्स डिफरेंट होंगे, लाइक वो हो पूरा सकता है, हाँ। वो अरे वो बंद होने का छोड़, बट अगर हो गया बंद, हम्म, लोगों पे क्या बीतेगी, मैं वो बोल रहा हूँ। जो लोग रियलिटी से यहाँ पे है मेटावर्स में। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट। जैसे कि देख, पबजी उनको अगर तो बैन हो पटक दिया तो ना लोग, तुम लोगों ने रियलिटी पे। हाँ देख पबजी जब बैन हुआ था तब हाँ कुछ न्यूज आई थी, कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज वो तड़प रहे हैं पबजी खेलने के लिए। हम्म, हाँ, तो और अगर मेटावर्स तो भाई तुम्हें लाइफ ही दे रहा है। 4-5 घंटे के लिए अगर मेटावर्स डाउन हुआ, सो इट्स लाइक कि तुम अपने आप की पूरी, यू आर लूजिंग योर सेल्फ। और ऐसी फेक न्यूज, और देख प्लस ऐसी फेक न्यूज सब जगह फैल गई कि मेटावर्स बैन होने वाला है। भाई तब तो मजे। तब रियलिटी,
जब मर यार मतलब आएंगे ना न्यूज, भाई ये मर रहे, वो मर रहे, इतने बच्चे मर रहे, भाई तबाह हो जाएगा। आई थिंक यही चीज बोलूंगा मैं कि रियलिटी वोंट बी द सेम एवर मेटावर्स अगर आ गया तो। अगर इसको अच्छी तरीके से मॉडरेट कर लिया तो ये जो भी हमने बातें की है नेगेटिव्स में, हो सकता है पॉजिटिव्स में बन जाए अगर प्रॉपर मॉडरेशन आ जाए, रेगुलेशन आ जाए तो हो वो सकता है कभी हमारी। नहीं होगा। हाँ नहीं हो सकता यार, क्योंकि बहुत वास्ट तुम दुनिया बना रहे हो ना एक तरह से वर्चुअल। हाँ, और टाइम तो लगेगा, मुझे नहीं लगता 5 साल बहुत कम है। But हाँ we can't maintain like हाँ 150 crore people as a population. We can't maintain, हम नहीं कर सकते। एंड वहां पे तुम सोचो तुम्हारी एक और रियलिटी, लाइक 7 बिलियन लोग हैं, अगर 7 के 7 बिलियन आ जाते हैं अपनी डिफरेंट और रियलिटी से, प्लस तो सोचो 14 बिलियन लोगों को तुम्हें मेंटेन करना है। केओस हो और जब जाएगा यार, मुझे आएगा, लग रहा है केओटिक हो और जाएगा जब बहुत। आएगा तब हम्म यूट्यूबर्स क्या तो प्रमोट कराएंगे लोग, इन्फ्लुएंसर्स क्या तो हम्म। प्रमोट कराएंगे। रिसेंटली भाई मैंने एक ये न्यूज भी सुनी थी कि फिर एआई। आएगा हाँ मेटावर्स वर्सेस यूट्यूब। हाँ हाँ हाँ। मेटावर्स, यूट्यूब फिर मेटावर्स में कैरिमिनेटेड चला जाएगा। डिस्प्ले। मेटावर्स हाँ के अंदर होगी भाई यूट्यूब। हाँ, वो तो है। नहीं मैंने पता है ये चीज इनएविटेबल है, नहीं मतलब पता है भाई होगी होगी। बट एक चीज मैंने सुनी थी कि एआई की मदद से एडिटिंग में थोड़ा आसानी आने वाली है, उस पर मैं हो सकता है एक वीडियो बनाऊं आगे जाके। अनिमेश वीडियो बना ले, एडिट तो बात की बात। हाँ तो यही है कि भाई एआई मतलब बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मिक्सचर है ना मेटावर्स। अगर हम्म, कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है, पूरा बिल्ड होगा आगे जाके वो जैसे तो कि है। बताया है। यही है तो भाई। आई थिंक हमने पॉजिटिव्स कवर कर लिए, आई थिंक हमने डार्क साइड कवर कर ली, काफी बातें कर ली जो प्लान नहीं थी। दैट इज दी आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन की जो चीज हमने प्लान नहीं की थी उसके बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें हो गई। तो आई हम्म, थिंक इसी नोट पे हमने सब कवर कर चुका है, अगर नहीं किया है तो तुम कमेंट्स में बता दो। एंड अगर ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर लग रहा देख है रहे हो तुम्हें। इधर तक तो हाँ इधर तक अगर नहीं, ये मैं पहले ही डालने वाला हूँ, ये अपना हाँ पहले आएगा पॉडकास्ट राइट। तो आई थिंक ठीक है। साहिल ने, पैरी ने बहुत सही सही चीजें बता दी हैं ऑन अ बेसिक ह्यूमन लेवल, जितना हम ये तीन लौंडे सोच सकते हैं अपने दिमाग से। तो इफ यू लाइक आवर डिस्कशन, इफ यू लाइक आवर कॉन्वर्जेशन, इफ यू लाइक आवर पर्सपेक्टिव्स, तो लाइक कर दो भाई, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा तुम्हें तो लाइक और करने में। प्लस प्लस अगर फ्यूचर से कोई ये देख रहा है, हम लोगों ने हाँ प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्ट किया है तो कि हम लोगों इलॉन को मस्क इज्जत हाँ, इलोन और मस्क और हम लोग को इलोन इज्जत मस्क मिलनी और चाहिए मार्क फ्यूचर जकरबर्ग। में, हम लोग दोनों को कोलैब फ्यूचर में करेंगे। इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है तो आई आइडिया मेरा थिंक था, लाया मैं। हाँ हाँ क्रेडिट तुम ले लो, यहाँ पे भी ले लो, तुम सारे क्रेडिट ले लो। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस कॉन्वर्जेशन, फॉर दिस पॉडकास्ट। यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर ये सब मेरे कर ही चैनल रहे हो, ये सब कर ही रहे हो, तो पैरी के इंस्टाग्राम पे, साहिल के इंस्टाग्राम पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, शायद हम बात करें, लेट्स इंटरेक्ट। हो सकता है जो तुम मैं नहीं पॉडकास्ट पे करने बातें वाला। मैं नहीं करने वाला। मैं करूंगा मैं मैं तुमको करूंगा। मैं कर लूंगा। मैं तुम लोग को मैं अनसीन पे छोड़ दूंगा भाई। ठीक है तो अनसीन। अनसीन पे छोड़ दोगे तुम। ठीक है तो आई थिंक यही था। अगर तुम स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो कर दो और टर्न दैट नोटिफिकेशन आइकन, जैसे ही हम ये सब कॉन्वर्जेशन लाएंगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। विद दैट सेड आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, अगर नहीं किए तो आगे जाके कर लेंगे अगले साल। पैरी साहिल अगले साल मिलते हैं, ठीक है। ओके सो आई वुड लाइक टू एंड दिस। अगर तुम्हें पसंद आई ये बातें, बता दिया है, सब कर यस, लेना। विशिंग यू वेरी ग्रेट डे अहेड, मजे करो। हैप्पी एंड दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस भी मेरी मना लो हैप्पी भाई। क्रिसमस। क्रिसमस, सैंटा हैप्पी क्लॉज अगर न्यू चाहिए ईयर। बच्चों के लिए तो साहिल को कांटेक्ट कर लेना। ओह, ठीक है। ओके सो विद दैट सेड, दिस वाज अनिमेश, दिस वाज साहिल, दिस वाज पैरी, signing off, wishing you a very great day ahead. Peace out. गम बड़े गम बड़े गम। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू तुम दोनों का। मिलते हैं जल्द। ओके बाय बाय, ठीक है, शबा खैर, बाय। बाय। बाय बाय।